لیکن دل کے راہ پر بہت آسان سفر ہے. جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے. جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے. جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے. اور نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے، 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے. نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے، 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے. کوئی ایک آدمی بولے سبحان اللہ، سب نہیں گئے. شعر ہلکا ہو جائے گا، سب سنتے رہے اور لوگ دیکھتے رہے ادھر. تھوڑی سی بہت بہت شکریہ. نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے، 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے. اور ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، آقا جدھر تھے ہم تو ادھر دیکھتے رہے. ہم کو نہیں خبر ہے، آقا جدھر تھے ہم تو ادھر دیکھتے رہے. بھائی یہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے ورنہ لالچ میں اس پہ شامل ہو جائے گا. ایک بات بتا دیں آپ، یہ سارے پیسے میرے ساتھ پردہ شریف جائیں گے. بھائی میں تو گھر جانے کا نہیں رہا، لیکن اٹھ مت آئیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ پیروں کی مٹی مجھے دے دیں تاکہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں. سرکار غوث پاک کرم فرمائے. دیکھیں آپ، 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے. ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، آقا جدھر سے ہم تو ادھر دیکھتے رہے. آقا جدھر. شعر و شاعری کا ماحول ختم کرنا چاہیے، آپ کی بھیڑ یہاں پر جمع ہے، مقصد بہت ہو جائے گا. سنیں آپ، میں گزارش کروں گا میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آئیے درود شریف پڑھتے ہیں. بیٹھے رہیے گا، آپ کی جب ضرورت ہوگی میں آپ کو بلاؤں گا مسافے کے لیے. آپ کہیں جائیے گا نہیں، اگر کہیں جانا بھی ہوگا تو دل چھوڑ کے جائیے گا، مجھے آپ کے دل سے مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ درود شریف کے حوالے سے پروفیسر واصف علی واصف نے ایک بات کہی ہے، اسے سونے کی قلم سے لکھنا. واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی؟ کچھ بولے ایک شرط ہے. بولے وہ ایک شرط کون سی ہے؟ ایک نہ کتنے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو واصف علی واصف نے کہا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کہا کون سی؟ کہا درود پڑھنے والے لوگ، یعنی آپ، درود پڑھنے والا ڈپارٹمنٹ، درود پڑھنے والے اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تب درود پڑھنا چاہیے. کیا مطلب؟ 200 سال پہلے کوئی مظفر پور میں آ کے انتقال کر گیا تو اس کے نام سے کوئی خط بھیجیں گے؟ بولنے پوچھ کے بولیں. خط وہیں بھیجیں گے جہاں جواب آنے کی امید ہو. درود بھی صاحب درود کی موجودگی میں پڑھا جائے، شرط ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی صرف ایک شرط ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھو ورنہ نہیں. تو اس نے کہا ہم نہ پڑھیں. کہا کیوں؟ کہا حضور 1500 سال، اگلے سال جب آئے گا نا ربیع نور شریف پہ تو 1500 سال پورے ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14.5 پونے 1500 سال پہلے، یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، مکہ شریف میں آئے، مدینے پاک میں آرام کر رہے ہیں، اور ہم غیر منقسم ہندوستان میں آئے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ واصف علی واصف نے کہا نا 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 نا. یہ سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. ہائے ہائے، بولے حضور تو تیرے زمانے میں. بولے یہ حضور کا زمانہ ہے؟ بولے بالکل یہ حضور کا زمانہ ہے. بولے ثبوت دیجیے. آپ ہیں، نظر آ رہے ہیں، آپ کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، نظر آ رہی ہے، لباس ہے، نظر آ رہا ہے، عشق جھلکتا ہے، وہ ظاہر ہے. تو حضور ہیں تو ثبوت دیجیے. تو واصف علی واصف نے کہا بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا. اللہ نے آسمان کو روک رکھا، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے، اور حضور ہی اس کی وجہ، حضور ہی اس کی غایت، حضور ہی اس کا سبب، حضور ہی کائنات کی جان. بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہان، ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے.
जमीन का बैलेंस कायम है, वक्त पर सूरज निकलता है, डूबता है, चांद चमकता है, गुरूब होता है। इसका मतलब ये सारा सिस्टम मकसूद कायनात की वजह से है और हुजूर ही कायनात की डिलीवरी का सबब है। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया कि दरूद पढ़ने का तरीका क्या है, जरा हाथ उठा के बताएं क्या पूछा गया। दरूद पढ़ने का, इसे याद करना है इंशाल्लाह साहिबो। दरूद पढ़ने का बोले तरीका क्या है, देखना कितने लोग मचलते हैं। तो सूफी साहब कहते हैं दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। मेरी टोपियां मेरे मोहसिनीन के कदमों के नीचे। बोले दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। बोले नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो कहते हैं ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठे थे, पूछा गया दरूद पढ़ते वक्त इसे याद करो। मैं अपने मिंबर के उलमा से गुजारिश करता हूँ और मैं इनको अपने सर का साहिबान और अपने मोहसिनीन की सूरत में देखता हूँ। दरूद पढ़ते वक्त पूछा गया आपकी हैयत क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दरूद पढ़ते वक्त अपनी गर्दन झुका लेनी चाहिए, अपनी पलकें या अपना सेंस, अपना ख्याल हल्का सा बाएं तरफ, फिर दरूद पढ़ना चाहिए। दाएं तरफ रूह का मकाम है और बाएं तरफ दिल है, दिल बाएं तरफ दिल। फरमाते सूफी साहब जब ये आवाज दरूद की दिल तक पहुंचती है तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचती है। समझ रहे हैं? और जब आप ऐसे दरूद पढ़ने लगेंगे, इसको लिख ले, बड़ी प्राइवेट बात है, तो 40 दिन के अंदर अंदर आपके सीने के अंदर दिल में मीठा मीठा दर्द होगा। नारे तकबीर। बड़े अदब और एहतराम के साथ बुजुर्गों की मौजूदगी में उनको शाहिद वादिल बना के दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिआदत कुल्लि मअदूदिन लक। मशाइख़ किराम के इल्मी वजूद के मुजस्समे के साए में हमारी जब नशोनुमा होती है तो फिर हमारा फ्यूचर बड़ा ताबनाक होता है, हमारा मुस्तकबिल बड़ा प्यारा होता है, हमारी नस्लों की तहजीब व सकाफत व लिसानियात भी मजहबियात की जुल्फों में मुक़य्यद रहती है। कामयाबी थी उसको कबूलियत में तब्दील होने की आसानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार गौसे आज़म के फैज़ान से अल्लाह सबको माला माल फरमाए। फैज़ सरकार सुरकाही शरीफ में लूटने की तौफीक अता फरमाए और उस दरबार के ज़व्वार की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। फिर कहीं कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कोई तकरीर नहीं होगी, बस बैठे रहिएगा आप। मैं कुछ बातें करता हूँ, वो बातें ऐसी, तकरीर सुनाता नहीं, बातें सुनाता नहीं, सोचता हूँ जो बातें हों उसे याद कर ली जाए। इसीलिए मैं धीमे लहजे में बात करता हूँ कि बातें याद कर ली जाएं, ताकि मैदान मैशर में ये न कहना कि फिर न कहना हमें खबर न हुई, हमें किसी ने ये बातें बताई नहीं। उम्मन इस मौजू पर आप एक महीने से गुफ्तगू समाप्त कर रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं जरा इस पर बात करूं अल्लाह उसके रसूल के फजल से। अल्लाह ने कुरान में जिसे नूर कहा, उस नूर से मुराद सब कहते हैं, हमने माँ के पिस्तान से यही सुनते चले आए हम कि इशारा हुजूर की तरफ है। नूर से मुराद अल्लाह के रसूल की ज़ात है।
इसीलिए हुजूर की आमद के मौके पर जब बिगुल बजता है तो यही ऐलान होता है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया। क्या बोलते हैं आप? नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। फिर अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसी नूर को अल्लाह ने हैयत दी और रहम की सूरत में बना करके, करम की सूरत में बना करके उसे जाहिर किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर की थोड़ी सी बात नूर के हवाले से और करम हुआ बिइज़्निल्लाह, हुजूर की मर्जी रही तो इन सरकारों की मौजूदगी में रहमत की सूरत में थोड़ी सी बात होगी। और यही बातें आज हिंदुस्तान की दुख भरी जमीन पर इंशाल्लाह मरहम का काम करेंगी। हालात बड़े ही खराब हैं मुल्क के। तकरीबन 5 दिन पहले वीरावल में, सोमनाथ में तकरीबन 10,000 शहीदों की 1200 साल पहले की मज़ारात को पुलिस ने तकरीबन, वहां की हुकूमत ने 1500 पुलिस वालों को लगा करके 200 ट्रैक्टर और 30 जीसीबी लगा करके 10,000 से ज्यादा मज़ारात को शहीद कर दिया। ये वो लोग थे जो सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले अजीमुशान काफिले का हिस्सा थे। हमें और आपको खबर नहीं है, आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि हमारे गांव की, हमारे शहर की जो मस्जिदें हैं जहां अभी आवाज कम कराई जा रही है, आने वाले दिनों में मीनार भी उतारने का हुक्म आने वाला है। मस्जिदें भी शहीद कर दी जाएंगी, कुरान के पारे भी जला दिए जाएंगे, औरतों के चेहरों से नकाब खींचने का वक्त आ गया और आपके दाढ़ी रखने के लिए आपको हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। बहुत दूर होते जा रहे हैं हम अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, बैठे रहें। अगर दिल कहता है कि, अगर नफ्स कहता है, शर कहता है चलो, तब भी यहीं बैठे रहना, क्योंकि ये हुजूर की महफिल है। हमें हुजूर की महफिल के बारे में, स्टेटस के बारे में इल्म नहीं। पहले के दौर में औरतें जब अपने बच्चों को अपनी गोद में रखती थी ना, तो बच्चे रोते थे तो उनकी सहेलियां कहती थी, ऐ अपने बच्चे को किसी हकीम के पास दिखा दे, किसी तबीब के पास दिखा दे, किसी मुस्तशफा हॉस्पिटल में लेके चला जा, चली जा। तो वो लड़कियां कहती, चल चल चल, मुझे मशवरे मत दे, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी अपने बच्चे को, बस मेरा बच्चा मेरी गोद में रोता रहेगा। बोले फिर ठीक कैसे होगा? तो लड़कियां कहती थी कि 2-3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है, मैं अपने बच्चे को हुजूर की मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा रात भर हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पाए। ये मकसद हुआ करता था। पहले के दौर में गरीब लोग हुजूर की मजलिस का इंतजार करते थे, माजूर लोग गरीब की मजलिस का इंतजार करते थे, लोग जिस्मानी तौर पर फिटनेस नहीं होते थे तो हुजूर की मजलिसों का इंतजार करते थे। ये तो मजलिस के फवायद आपको मिल रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? सूफिया कहते हैं जहां मजलिस रसूल होती है वहां 300 साल के बाद भी अगर किसी अल्लाह के वली का गुजर होता है, अगर किसी अल्लाह के वली का गुजर होता है तो वो भी यहाँ अपने गुलामों को लेकर ठहर जाता है और अपने मुरीदों से कहता है, यार ठहर, ये जमीन बता रही है कि इस जमीन पर कभी आमीना के लाल की बातें होती। हम समझते हैं ये मौलवियों का काम है, ये रोजाना डर रहा है उनके मुर्ग मुसल्लम खाने की तरकीब है। ना 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 मेरे भाई, यही वो जिक्र रसूल है जिसकी वजह से जमीन का निजाम था, जिसकी वजह से हमारी पलकों का झपकना बराबर मुतवातिर हो रहा है। हुजूर का जिक्र ना हो तो जमीन में फसाद फैल जाए, अगर हुजूर की बातें ना हो तो इंसान की रूह बीमार हो जाए, हुजूर का तस्करा ना हो तो हमारी आंखें अपना काम करना बंद कर दें। ये जिंदगी के शब रोज, ये आइन, ये आर्टिकल, ये कानून जो आज हमारी जिस्मानी इंसाइक्लोपीडिया का सबब बने हैं, वजह आमीना के लाल। ये कोई कागजी बात नहीं है, आप इसे समझोगे साइंसी एतबार से तो कोई तुम्हें समझाएगा, पुरानी एतबार से तब भी तुम्हें कोई समझाएगा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारे पास जो भेजा उसे नूर बना के। क्या कहते हैं आप? नूर वाला आया है। क्या बोलते हैं? अच्छा, हुजूर को नूर वाला, अब आप यकीन करें कि नूर वाला हुजूर है तो सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। बड़ी मशहूर बात है, जैसे आप नहीं पूछते अपने गांव के बुजुर्गों से, चचा आपकी उम्र कितनी है, तो चचा कहते हैं बेटा याद नहीं है। इतनी बात याद है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे तब सुबह शाम को 2 ट्रेनें आती, 2-3 दुकानें कुल थी सामने, अब तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे ही सवाल हुजूर ने जनाब जिब्रील से किया था, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जनाब जिब्रील ने कहा था, हुजूर मुझे याद नहीं है, इतनी बात याद है कि 70,000 साल के बाद एक तारा पर्दे, चौथे पर्दे हिजाब से, चौथे हिजाब के पर्दे से चमकता था एक तारा, मैंने उस तारे को 72,000 मरतबे देखा है। मैंने 30 सेकंड में कह दिया और आपने 10 सेकंड में नारे भी लगा लिए। फिर से रिवर्स करता हूं, समझो, ठहरो, कयाम करो, फिर आगे बढ़ना। वो कहते कि एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, कितने? उस तारे को मैंने 72,000 मरतबे देखा। जिब्रील कौन है? ये फरिश्तों के सरदार हैं।
कहे किससे रहे हैं? जो नबियों के सरदार। उसके बाद हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ में पढ़ने, इसी के माहसल और निचोड़ जैसा जवाब और है। सूफिया कहते हैं उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील के ये कहने के बाद अपनी पेशानी शरीफ के इस हिस्से को हल्का सा इमाम शरीफ से उठा के खोल दिया। जैसे हुजूर ने खोला, जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट गए और लिपट के बोले, आका वो तारा जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबे चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है, वो इस वक्त तारा आपकी पेशानी पे चमक रहा है। आखिर इनसे बर्दाश्त कैसे हो? तो ये नारा लगाए, ये नारा लगा के दम लेंगे, नूर वाला आया है। बोले भाई, बोले नूर वाला, नूर लेके आया है, नूर लेके आया है। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फर्स्ट मैन कहा जाता है, यानी पहला आदमी। यानी ये लोग कहते हैं अबुल इंसान, कहते हैं अबुल बशर, कहते हैं बशर के बाप, इंसानों के बाप। उनके बेटे का नाम है शीस अलैहिस्सलाम। 70% राइटर्स कहते हैं कि अयोध्या में उनकी मजार शरीफ है। मैं बहुत गया हूं उनकी मजार शरीफ पर। 10,000 से ज्यादा औलिया किराम की मजार शरीफ अयोध्या फैजाबाद में, जहां बाबरी मस्जिद है। माफी चाहता हूं, उसे ठीक कहने का दिल नहीं करता। अपने बच्चों से मैं हर राज छुपा लूंगा, मगर 6 दिसंबर का मैं अखबार कहां रखूं। उसी मुबारक जमीन पर एक नबी के बेटे शीस अलैहिस्सलाम, जो खुद नबी हैं, लेटे हुए। शीस अलैहिस्सलाम। 30% मुअल्लिफीन ने एहतियाती जुमले उनके वहां होने के बारे में इजहार फरमाए। 70% की मजबूत आ रहा है वहीं पर है। उन्होंने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम से बात की। बाप ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से, बाप ने कहा, अरे मेरे बेटे शीस, मैं पहला आदमी, तू मेरा बेटा, मैं दुनिया से जा रहा हूं, एक बात तुझसे कह के जा रहा हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मेरे जाने के बाद जब तुझे कोई दिक्कत पैदा हो तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। खुश हो रहे हैं आप कि आपके नबी की बात हो रही है। अरे मेरे बेटे शीस, सुन, मेरे जाने के बाद मोहम्मद के नाम का वसीला देना। जनाब शीस खड़े हो गए, बोले बाबा जान ये क्या मतलब है? आप पहले आदमी हैं, मैं आपका बेटा हूं, दरमियान में मोहम्मद कहां से आ गए? और आपको तो अबुल इंसान, इंसानों का बाप कहा जाता है, ये मोहम्मद कहां से आ गए? तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ये सच है, मैं फर्स्ट मैन हूं, मैं अबुल इंसान, इंसानों का बाप हूं, अबुल बशर, बशर का बाप हूं। ये मोहम्मद अबुल अरवाह, रूहों के बाप, ये रूहों के बाप है। हाय 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 हाय, ये रूहों के बाप हैं। तो जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अब्बू जान, आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद, आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जन्नत पे जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने क्या देखा? दरख्तों की हर पत्तियों पर जहां अल्लाह लिखा था, उसी के आगे मोहम्मद लिखा था। मेरे दिल से आवाज आई, अल्लाह वो जिसने कायनात बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई है, हुजूर ही कायनात का सबब। और सुन बेटे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, सुन मेरे बेटे सुन, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तू भी चला जाएगा, तेरी औलादे नबी रसूल बन के आएंगी। कोई नूह आएगा, कोई याकूब, कोई यूसुफ, कोई जुल्किफल, कोई दानियाल, कोई यूशा बिन नून, कोई सालेह, कोई हूद, कोई इब्राहिम, कोई मूसा, कोई ईसा, कोई सुलेमान। ये बड़े बड़े लाखों नबियों की जमात आएगी। मालूम है इनका काम क्या होगा? बोले ना ना ना, मुझे नहीं मालूम है। बोले अपनी उम्मत से सारे नबी यही कहने के लिए आएंगे, तैयारी कर लो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं। जमीन की कारपेट को साफ कर दो, आमीना का लाल आने वाला है। सबके आने का यही मकसद, वो एक अनाउंसर, एक नाजिम, एक संचालक बन के आएंगे कि तैयारी कर लो, हुजूर आने वाले। कायनात जिसकी वजह से पैदा हुई है, वो कायनात का मालिक अपने हबीब को भेजने वाला है। रसूलों के सरदार की आमद होने वाली है। उनकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता था। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वही नूर ट्रांसफर होता रहा, मुंतकिल होता रहा, आगे बढ़ता रहा। मक्के शरीफ में आया तो अब्द मुनाफ नाम के एक बुजुर्ग थे, उनकी पेशानी पे चमका। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। जब दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो वही 1 साल के बाद उनके घर में एक शहजादे की सूरत में आया। यही शहजादा बड़ा हुआ तो नूर मोहम्मदी उसकी पेशानी पे चमका, जिसको दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि हुजूर के सगे परदादा का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? हजरत हाशिम।
اچھی بولے ابھی ان کی پیشانی پر نور محمدی چمکا, کمال دیکھیں. وہ کہتے ہیں میرے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی, میں جس زمین پر اپنا پاؤں رکھتا تھا, جناب ہاشم کہتے ہیں, پاؤں اٹھا کے آگے بڑھ جاتا تھا, لیکن وہاں کی مٹی کئی دنوں تک مہکتی تھی. لوگ مجھ سے کہتے تھے ہاشم بڑے کمال والا ہے, تیرے پاؤں کی مٹی مہکتی ہے. تو میں کہتا نہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, سارا کمال نور محمد کا ہے. ان کی شادی مدینے شریف میں ہوئی. وہ مدینے پاک بزنس کرنے کے لیے مدینے آ کے بسرا جا رہے تھے اور لوٹے تو ان کی پیشانی کی چمک دیکھی مدینے شریف میں. خاندان نے اس خاندان کو قبیلے بنو نجار کہا جاتا ہے. اسی خاندان کی لڑکیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. اور ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ تعالی عنہا لڑکی کی نعت کو پڑھا تھا, جس نعت کو سن کر کے فرشتے ہی نہیں جھومے, اللہ کا رسول بھی جھوم رہا تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. اسی خاندان کی ایک لڑکی تھی, اس کے ماں باپ نے دیکھ لیا جناب ہاشم کو. بولے ہاشم تمہاری شادی ہوئی؟ کہا نہیں. کس کے بیٹے ہو؟ کہا عبد مناف. کون عبد مناف؟ بولے وہ کعبے کا متولی, بڑے بڑے اونچے اسٹیٹس پہ ہو. شادی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں. کہا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ فرمایا رب کی مرضی ہوئی. کچھ شرطوں کے ساتھ ان کی مدینے شریف میں شادی ہو گئی. حضور کے پردادا کی شادی کچھ شرطوں کے ساتھ مدینے میں ہوئی, جو ان کے نکاح میں لڑکی آئی تھی اس کا نام تھا حضرت سلمہ. یہ حضور کی سگی پردادی ہے. اگر کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے سگی پردادی کا نام؟ سب کی آواز نہیں آئی. یہی دونوں میاں بیوی, یہ دونوں اجسام مبارکہ, یہ دونوں روحیں جب اکٹھا ہوئی اتصال کا شرف پاتی ہیں تو اس گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا 12-13 مہینے کے بعد, جس کو دنیا حضور کے دادا عبد المطلب کے نام پہ جاتی ہے. سبحان اللہ. جب جناب عبد المطلب پیدا ہوئے تو وہ کہتے ہیں میری پیشانی پر نور محمدی چمکا تو میرے اندر یہ کمال پیدا ہوا, جب میں مکے کی گلی سے گزرتا تھا تو بیمار بکریاں, بیمار جانور میرے قریب سے گزرتے تو اللہ انہیں شفا عطا فرماتے. لوگ کہتے تھے عبد المطلب بڑے کمال کا ہے, بکریاں تیرے قریب آ کے جن کی تھن کو دودھ سے بھرا ہوا ہم دیکھتے ہیں, مرنے والی بکریاں زندگی پا جاتی ہیں. تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میرا کوئی کمال نہیں, سارا کمال نور محمدی کا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میری شادی مکے شریف میں جس لڑکی سے ہوئی, اس لڑکی کا نام سن کے میں اکیلے اگر میں نام بتاؤں گا تو ایک آدمی ضرور سبحان اللہ کہے گا. اس کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب فاطمہ بڑا پیارا نام ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سگی دادی کا نام فاطمہ, اور حضور کی سگی بیٹی کا بھی نام فاطمہ, حضور کی نواسی کا بھی نام فاطمہ, حضور کی نواسی کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ, اور حضور کے لاڈلے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام فاطمہ, ماں کا بھی نام فاطمہ. وقت ہوتا تو اس موضوع پر بات کرتا, مجھے تو آپ جیسے لوگوں کی دعائیں لینی ہیں. سنیں آپ, جناب عبد المطلب کی شادی مکے شریف میں فاطمہ نام کی لڑکی سے ہوئی. آپ کہتے ہیں جب ہم دونوں اکٹھا ہوئے تو ہمارے گھر میں 1 سال کے بعد ایسا حسین شہزادہ پیدا ہوا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے لوگ جاتے. مکے شریف میں حضور کے ابو پیدا ہوئے, ذرا خوش ہو جاؤ, کہہ دو سبحان اللہ. یہ خوشی کا مقام ہے. نور محمدی اپنے اصل سینٹرل پوائنٹ پہ آ رہا. اب زمین پر نعرہ لگنے والا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے. لوگ اب دعا مانگیں گے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سب سے پہلے یہ شعر دعاؤں کی صورت میں زمین مکہ کی گود اٹھی ہوئی تھی, اور اس وقت زمین مکہ کی کوکھ سے یہی آواز آئی تھی, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو مکے کی زمین کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی تھی. اس کے بعد مدینے کی زمین نے دعا مانگی, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, خدا کا جیتے جو کر لوں نظارہ یار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ پیدا ہوئے. پیار سے بولو سبحان اللہ. کوئی ڈرامہ کی کیسٹ نہیں ہے, کوئی کپل شرما کی ہنسی مذاق کی داستان نہیں. سنو اپنے نبی کی باتیں. آپ نہیں سنو گے تو کون سنے گا؟ آپ چن لیے گئے ہو. میں یہ باتیں ہندوستان کے فائنانس منسٹر کو نہیں سنا سکتا. کیوں؟ وہ بے توفیق لوگ ہیں اور آپ توفیق پائے ہوئے لوگ ہیں. بڑی بڑی طاقتیں ہندوستان کے باہر بھی اتنیاں ہوں, شیکسپیئر, ملٹن, آئنسٹائن, لارڈ میکالے اور بائیڈن جیسے لوگ ہیں. ان کتوں سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کا تذکرہ تو ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آیا ہے. آپ زمین پر نہیں بیٹھے, آپ آسمان پر بیٹھے ہوئے. خدا سب سے بڑے امیر آپ بھی ہیں, سب سے بڑے خوش قسمت آپ بھی ہیں. جن کے حصے میں حضور آ جائے اس سے بڑا امیر کوئی نہیں. معلوم ہے میرے آقا کے ابو جناب عبداللہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے نور محمدی چمکتا تھا. وہ کہتے جب میں پیڑ پودوں کے قریب سے گزرتا تو پیڑ پودوں کی شاخیں جھک جھک کر کے مجھے سلامی کرتی تھی,
और कहती थी, अय अब्दुल्ला मुबारक हो, तेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता है, तेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता है। और लेकिन इस नूर को देख के ईसाइयों ने और यहूदियों ने बहुत खौफलाहट पैदा की। उन्हें यकीन हो गया कि जिस नबी के आने से मेरा तीन मलिया मेट हो जाएगा, उस नबी का नूर अब्दुल्ला की पेशानी पे चमकता है। उस वक्त दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी, एक को ईरान कहा जाता है, एक को रूम कहा जाता है। रूम का नाम अब इटली है, और ईरान की जो हुकूमत थी वो इराक के दारुल हुकूमत बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन एक जगह है, जहां पर वो किला हुजूर की पैदाइश पर जिसकी दीवारें फट गई थी, और वो कैसर का महल जहां कंगूरे टूटे थे, वो इटली की जमीन पर। दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी जब हुजूर जमीन पर आए थे। उन हुकूमतों के मालिकों नजूमियों ने कह दिया था वो नबी आ गया है, आने वाला, अब बच नहीं सकते, कहीं तुम्हारे लिए जाए पनाह नहीं है। ईसाइयों ने हुजूर के अब्बू का कत्ल करना चाहा, पूरे मक्के की पहाड़ियों में छुप छुप करके बैठा करते थे। उन दिनों एक जादूगरनी ने हुजूर के अब्बू को देख लिया, कहा रुक जाएं, ठहर गए। जनाब अब्दुल्ला, उसने कहा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। बाप का नाम क्या है? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले दादा का नाम? बोले हाशिम। परदादा? बोले अब्दुल मुनाफ। बोलो काबे के मुजावर हो, काबे के मुतवल्ली हो, जवारे काबा की खिदमत करने वाले हो, बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज हो। बोले रब का शुक्र है, तू क्या चाहती है? उसने कहा अब्दुल्ला, तेरी पेशानी पे एक नूर चमक रहा है, मुझे लालच लग रही है, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरी जौजा बन जाऊं, तू मेरा जव्वज बन जाए, और ये नूर जो तेरी पेशानी पे चमक रहा है मेरे पेट। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ये नूर ऐसा नहीं है जो तुझ जैसी जादूगरनी के शिकम में जाए, मैं इनकार करता हूं। आप रिश्ते को ठोकर मार के अपने घर आ गए और घर वालों से कहा कि लड़कियां मक्के शरीफ की मुझे ऑफर करती हैं शादी की, इस नूर मोहम्मदी की वजह से लालच में वो पड़ जाती हैं मुझे देख करके। घर वालों ने कहा कि अल्लाह का हुक्म हुआ, जल्दी तुम्हारी शादी होगी। उस वक्त आप अकेले ही मक्के की पहाड़ियों से गुजर रहे थे, 70 ईसाइयों ने हुजूर के बाप पे हमला कर दिया। ये जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे जनाब अब्दुल्ला को, लेकिन जिसे अल्लाह ताला सलामत रखे उसे कौन मिटा सकता है। मालूम क्या कहा था? नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, इनसे कह दो कि फूकों से ये चराग बुझाया। आज जो इस्लाम को मिटाने के लिए बात करते हैं, सुभान अल्लाह, कल 70 साल पहले जब मुरादाबाद की इस जमीन पर चौराहे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी को लेके आया गया था, जज ने कहा था काफी मुरादाबादी तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश तो बता। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन जज, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, हुजूर की नात। तो उसने कहा पढ़ ले, मरने से पहले ये तेरी आखिरी नात होगी। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन, मेरी आखिरी नात नहीं होगी, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन हर मजलिसों में मेरी नात पढ़ी जाएगी, और आज पढ़ी जा रही है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इस्लाम कोई संडीला का लड्डू नहीं जिसे हजम कर लिया जाए, इसमें इमाम हुसैन के जद्दे करीम का लहू शामिल है। आइए दोस्तों बात करते हैं हुजूर की आमद आमद की। हुजूर नूर बन के आए हैं, क्या कोई चुपके से कह सकता है नूर वाला आया है? नूर लेके आया है, ऊंची बोले, नूर लेके आया है। जनाब अब्दुल्ला कहते मैंने अकेले तलवार निकाली और 70 के मुकाबले में सामने आ गया। वो एक तरफ तलवारें थी, एक तरफ तलवार थी, और लड़ाई शबाब पर थी। एक बूढ़े बुजुर्ग ने आवाज सुनी तो उस जो है रज्मगाह में आ गया, उस कत्लगाह में आ गया। देखा तो एक तलवार 70 तलवारों का मुकाबला कैसे कर रही है। वो उसने भी जनाब अब्दुल्ला का साथ दिया। 70 ईसाई कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। जनाब अब्दुल्ला ने अपनी तलवार को खून से साफ किया, और जैसे उसे म्यान में रखा, तलवार को रखी जैसे म्यान में, मालूम है वैसे वो बुजुर्ग करीब आए, बोले बेटे बड़े बहादुर मालूम होते हो, बूढ़ा हो गया हूं लेकिन तुम जैसा जांबाज नहीं देखा, तुम जैसा कभी बहादुर इंसान नहीं देखा, अकेले 70 को हरा दिया। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल नूरे मोहम्मद। जैसे नूरे मोहम्मदी को उस बूढ़े ने देखा, उनकी नीयत तब्दील हो गई। बोले ये नूर तेरी पेशानी पे चमकता है, बड़ा प्यारा है, तेरी शादी हुई? कहा नहीं। नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। बोले ओ अब्दुल्ला नाम है? बोले आप। तेरे बाप का नाम? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले वो अब्दुल मुत्तलिब जिसके हाथ में बाबे काबा की चाबी है, जो काबे के दरवाजे की चाबी जिसके पास है? बोले हाँ। बोले वो काबे की तजीनकारी जिसके जिम्मे? फरमाया हाँ। तो जनाबे अब्दुल्ला से उस बूढ़े ने कहा कि मेरी एक बेटी उससे शादी करेगा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते, मेरी एक बेटी शादी करेगा। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम वहब है। ये दो नाम मैं लूंगा, वहब का और उनकी बीवी का। हुजूर गौस पाक ने एक बुजुर्ग को बशारत में फरमाया था कि जिसकी दुआएं कबूल ना हो, इन दोनों नाम के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। हाथ उठा के वादा करें, याद करेंगे इन दोनों नाम को इंशाल्लाह। वो बेस क्या है वो बाद में पता चलेगा इंशाल्लाह।
जनाब अब्दुल्ला ने कहा आपका नाम क्या है? बोले वहाब। वाव तो चश्मी है, वहाब। बोले आपकी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। क्या नाम है? बर्रा। बोले अच्छा, जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहते हो उस लड़की का नाम क्या है? देखना कितने लोग सवाल। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। बोले जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहते हो उसका नाम क्या है? तो उस बूढ़े ने कहा कि उसको दुनिया बीबी आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। अम्मी आमिना का नाम सुना तो जनाब अब्दुल्ला को मिठास पैदा हुई। बेइज़्निल्लाह रब की मर्जी थी, दिल में मुस्कुराहट और तमानत कल्बी का एहसास हुआ। घर आए, रिश्ते की बात हुई। हुजूर के अब्बू की शादी हुजूर की माँ अम्मी आमिना से हो गई। किस महीने हुई कहो तो बता दूं? चुपके से बताऊंगा ताकि सब न सुनने पाए। बता दूं? रजब शरीफ के महीने में। अगर किसी की बेटी और बेटे की शादी रजब शरीफ के महीने में हो, एक नियत ये भी कर लिया करो कि इसी महीने हुजूर के अब्बू की भी शादी। अलग से आपको बेनिफिट। कोई पूछे तो क्या बताओगे? हुजूर के अब्बू की शादी किस महीने हुई? आवाज कमजोर है। किस महीने हुई? एक महीने में 4 जुमा होता है, करीब करीब कभी 5 हो जाता है। कितने? आइए बड़ी प्राइवेट बात बताता हूँ। हर दूसरा शख्स साहिब औलाद बैठा हुआ है। इशारे की बात करूंगा, रिकॉर्डिंग है, कोई माँ बहन भी सुनती रहती ना, तो ये फहश बात ना हो। मालूम है हुजूर की माँ अम्मी आमिना फरमाती है रजब शरीफ की जुमा की रात, जुमा की रात थी, मैं अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। कौन सी रात थी? और आप मुस्कुराइएगा जो समझ लीजिएगा, ज्यादा मुझे ओपन करने के लिए हुक्म मत दीजिएगा वरना बात खराब। ठीक है, ये अदबी महफिल है। अम्मी आमिना फरमाती मैं जुमा की रात थी रजब शरीफ के महीने में, अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। उसी रात अल्लाह के हुक्म से नूर मोहम्मदी ट्रांसफर हुआ और मेरे शौहर की पुश्त में आया, पीठ में, और फिर वहां से ट्रांसफर होकर के मेरे पेट। एक मिनट, ये जमीन बुजुर्गों की है, दुर्वेशों की है, मस्तानों की है। असल मौका यही है कि अपने हाथ को उठा के कह दिया जाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। फिर से बोले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि दुशंबा का दिन अफजल है, इस दिन हुजूर जमीन पर तशरीफ लाए। वो कहते हैं ना, मेरी नजर में जुमा का दिन अफजल है, इस दिन हुजूर अपनी माँ। फिर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका। जनाब अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती जुमा के दिन हुजूर मेरे पेट में आए। चुपके से पूछूं आपसे, कितने लोगों ने ये बात समझी है? समझ गए माशाल्लाह। जिनकी गोद खाली है अल्लाह उसको इस जिक्र के सदके में उसकी गोद को भर दे। कहते समझ गए आप? एक जुमा, एक महीने में 4 जुमा होते हैं। अब वो 4 जुमा में कौन सा जुमा था भाई? 4 जुमा होते हैं, एक जुमा को हुजूर ट्रांसफर हुए थे अपनी माँ के पेट में। कौन सा जुमा था? मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं। बताने पर पाबंदी है। अब कैसे पता चले कि भाई यही जुमा था? तो सूफिया कहते हैं रजब शरीफ के महीने में हर जुमा को 100 मरतबे दरूद शरीफ पढ़ा करो, कभी न कभी तो उस लम्हे से मुलाकात होगी। राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में। रजब शरीफ के बाद शाबान का महीना आता। कौन सा? शाबान के बाद कौन सा महीना? रमजान का। बोले भाई बात मक्के की हो रही है, रमजान के रोजे भी फर्ज नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब आमीना अपनी बीवी के पास आए। बोले अरे मेरी बीवी आमीना, 2 महीने हुए हैं शादी को, मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। मुल्क शाम कहाँ है मालूम है? जैसे इंडिया, भारत और हिंदुस्तान 3 नाम है ना, 3 नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। वैसे मुल्क शाम के 2 नाम है, एक शाम और सीरिया। क्या? सीरिया और शाम। इसकी राजधानी को अंग्रेज दां तबका दमिश्क बोलता है, उर्दू पढ़े लिखे लोग दमिश्क बोलते हैं। इसी दमिश्क की राजधानी में वो बुजुर्ग मोमिनों के, अमीर मुसलमानों के बादशाह लेटे हुए हैं, जिनको उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है, जिनके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इस दौर को। अब तो बकरी बकरी के साथ पानी पीने को तैयार है। इनके दौर में शेर और बकरी एक साथ पानी पी रही। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दो, इसी दमिश्क में वो अजीम शान बादशाह लेटा हुआ है जिसका इंतजार हर फलस्तीन का बच्चा करता है, जिसे दुनिया फातह बैतुल मुकद्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहिए माशाल्लाह। अल्लाह इन आवाजों को तकवीत बख्शे और फलस्तीन के शहीदों के काम आ जाए भाई, आमीन कहते हैं। इसी जमीन दमिश्क पर वो अजीम शान सहाबी रसूल लेटे हुए हैं जिनका बरकत वाला नाम इन उलमा के ज़बान मुबारका पर है, जिन्हें सैफुल्लाह का टाइटल हुजूर ने दिया था। खालिद बिन वलीद जिनका नाम था। बोले तलब के सुभान अल्लाह।
इसी जमीन पर वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनको आपने देखा होगा लॉकडाउन में। बहुत मशहूर एक सीरियल था वो खिलाफत उस्मानिया के हवाले से, मैंने उसको 1 से 1.5 मिनट देखा है, उससे ज्यादा नहीं देखा। तारीख उनकी बड़ी प्यारी है, वो जो सीरियल तो बात को मिजाज के खिलाफ है। उसमें एक बुजुर्ग की तस्वीर दिखाई जाती थी, वो तो मसनूई है, मैं उसका कायल नहीं हूँ। उनका नाम है शेख अकबर शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह। ये गौस पाक सरकार के रूहानी व जिस्मानी बेटे हैं। जिस्मानी मैंने क्यों कहा, ये तन्हाई में पूछे तो बता दूंगा। इनकी भी मजार शरीफ यही दमिश्क में, समझ गए? उसी के करीब में कब्रस्तान है। इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सुकैना की मजार। अगर कोई बोले तो बता दूं, इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन की बहन मखदूमा जैनब सानिया जहरा लेटी है। इसी कब्रस्तान में मखदूमा फातिमा की नौकरानी मखदूमा फिजा लेटी हुई है। इसी कब्रस्तान में, अब देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, इसी कब्रस्तान में मौज़िन रसूल सरकार बिलाल हबशी भी लेटे हुए। एतिकाद सहिया के साथ फख्र से ऐलान करता हूँ, उलमा किराम ने मुझे दुआओं से, इसी कब्रस्तान में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताएं। चलेंगे, बगदाद भी चलेंगे इंशाअल्लाह। आप ये ना सोचें कि आसिफ भाई खर्चा बढ़ा रहे हैं, जब वो बुलाएंगे तो वो इंतजाम भी करेंगे। हाँ, चलेंगे ना इंशाअल्लाह। गौस पाक की बात, खूब धूम धूम से गौस पाक की नियाज करना। अगले साल जरूर बगदाद शरीफ जाएंगे इंशाअल्लाह। नारे लगाएंगे लब्बैक या गौस आजम। जोर से बोले, सबके हाथ नहीं उठे, ऊंची आवाज में बोले। अभी तो दादा की बात चल रही है, सुने, फिर बात करता हूँ सैयदना। कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा। अब आप आएंगे, जब इसके बाद मैं आऊंगा तो आप आएंगे। कहाँ जाएंगे? सारी जमीन तो गौस पाक की है, समझे? इंशाल्लाह बैठेंगे खूब। कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवार। फिर बातें होंगी सैयदना शाह। अभी तो उनके जद्द करीम की ये मिलाद मुबारका का महीना, मुझे याद आई ये बातें, तो मेरे दिल ने कहा कि इतनी मुबारक समाते हों गौर भाई और साहिब भाई। दिल कहता है कि इन्हें हुजूर की मोहब्बतों से आशनाई हो जाए। ठीक है, दिल से बोले नूर वाला आया है। हुजूर अपनी माँ के पेट में है, दूसरा महीना हो गया। हुजूर की माँ के पास हुजूर के अब्बू आए, बोले आमीना मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जा रहा हूँ। बोले कब आओगे? बोले 1 महीने के बाद। बोले 2 महीने हुए शादी को, अभी जा रहे हो? बोले हाँ अभी जाना है, बिजनेस बहुत जरूरी है। जनाब अम्मी आमीना कहती मैं दरवाजे पर अपने शोहर को रुखसत करने आई। तो जो देना भाई, दरवाजे पर अपने शोहर को छोड़ने के लिए आई थी। मेरा शोहर मेरे घर से जा रहा था 1 महीने के लिए। मालूम है अम्मी आमिना रो के बोली थी बाद में, मुझे क्या खबर थी कि ये मेरी और मेरे शोहर से आखिरी मुलाकात। अल्लाह अकबर, इसके बाद मेरी मेरे शोहर से मुलाकात हुई। अम्मी आमिना कहती मेरा शोहर जा रहा था, मैं उसे देख रही थी, 1 महीने के बाद वापस आएगा, मेरे सर का ताज मेरे घर पे जगमगाएगा। जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं मैं वहां से निकला तो मदीना हो के रास्ता है मुल्क शाम का। मदीना 480 किलोमीटर के पास है, फिर वहां से ये बसरा है जो बगदाद शरीफ से 650 किलोमीटर के पास है, पर कुवैत के बॉर्डर पर है। यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ से निकले, वो अरार बाएं तरफ बॉर्डर है जिसे अरब में दाखिल हो जाते हैं। आगे निकल गए बगदाद दाएं तरफ, सीधे निकल के कुरकुक सुलेमानिया मोसिल होते हुए मुल्क शाम के बॉर्डर पे गए और फिर दमिश्क गए। हुजूर के अब्बू 30 से 40 लोगों के साथ सामान बिजनेस बेचा, तिजारत का सामान बेच के वापस मदीना हो के मक्का आने वाले थे कि हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई मदीने शरीफ में। भरी जवानी में बीमार पड़ गए, भरी जवानी में बीमार पड़ गए। और बीमार हुए तो कहाँ गए? अपनी दादी हजरत सलमा जो हजरत हाशिम के निकाह में थी, उनके घर में आपने क़याम किया। उन लोगों ने बड़ा इलाज किया, लेकिन जनाब अब्दुल्ला ठीक न हो सके, आखिर उनका मदीने शरीफ में इंतकाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में, अम्मी आमिना के पेट में है और अभी 2.5 पौने 3 महीने के हैं। हुजूर यतीम हो गए। हुजूर की माँ 23.5 या पौने 24 साल की हुई थी कि बेवा हो गई। क्या कहता है अल्ताफ हुसैन हाली, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की पर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ आया। हुजूर के अब्बू की जो कब्र शरीफ बनी थी, वो खोखे सिद्दीक अकबर के करीब में एक मोहल्ला था जिसे दारे नाबिगा कहा जाता है। उनकी कब्र शरीफ की एक तस्वीर लॉन्च हुई थी। किताब का नाम था निशानात अर्ज़ नबवी। किताब का राइटर जमात इस्लामी का है मिस्बाहुद्दीन शकील। इस पर मुकदमा लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। इस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर सबसे पहले शाये हुई।
मैंने ये किताब 14 साल पहले जमजम टावर 80 मंजिले की इमारत में मैंने खरीदी थी, तब ये मुझे 950 की मिली। अभी इस किताब की कीमत तकरीबन 1800-1900 है। सलाम के बाद आप पीडीएफ के जरिए से देख सकते हैं। किताब चाहिए तो फिर मेरे साथ मेरे घर पे चले। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ मदीने बन गई। मक्के वालों को खबर नहीं कि आमिना बेवा हो गई। कबीले कुरैश का एक फर्द कम हो गया। न कोई व्हाट्सअप, न कोई फेसबुक, न कोई इंस्टाग्राम, न कोई न्यूज चैनल, न कोई अखबार, कोई बताने वाला भी नहीं। सारा ग्रुप उनका मदीने में रुका हुआ था। उनकी तदफीन अमल में आई है दारे नाबगा में 1978, यानी आज से 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। इंतकाल कब हुआ? जब हुजूर अपनी मां के पेट में थे। हरम की मस्जिद की दीवारें तौसी हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी, तो हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई थी। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। देखने वालों ने तो ये देखा है कि आपका जिस्म तो जिस्म है, कफन के एक एक धागे चमक रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां तक कि आपकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं। उनका नाश मुबारका उठा करके ऊपर रखा गया और चेहरे मुबारका खोला गया 1978 में। उस वक्त मदीने शरीफ में खुद मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी आला हजरत के खलीफा मौजूद थे। उन्हें खबर लगी कि हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई है, ऊपर लाके रखी गई है। तो आप दौड़े हुए आए, मदीने के टॉप क्लास के लोगों में शामिल थे। मौका मिला हुजूर के अब्बू के जनाजे के करीब जाने का। आप पहुंचे तो कहते हैं मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैंने हुजूर के अब्बू की जो नाश मुबारका रखी थी, मैं दौड़ करके मैंने पेशानी का बोसा दिया। हुजूर के अब्बू की पेशानी का मैंने बोसा दिया। जब मैंने बोसा दिया तो उसके बाद नामालूम जगह उनकी बकी शरीफ में लाश तदफीन अमल में आई है। मैं अपनी खानकाह में आ गया। शेख ज़ियाउद्दीन कहते हैं जैसे मैं अपनी खानकाह में आया, मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक बात बताऊं। कहा क्या? जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दे रहे थे, उस वक्त आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा दे रहे थे। समझ गया? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा दे रहे थे। इतना सुना तो शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी कहते मैं खड़ा हो गया। मैंने कैंची मंगाई और कैंची मंगा करके अपनी दाढ़ी के इन बालों को मैंने काट लिया और काट करके उन्हें शीशी में रखा। और मैंने कहा खबरदार, इनका एहतराम करना। मैंने इसे इसलिए काट के अलग कर लिया, मैं डर गया अगर मैं कहीं वजू करने चला गया तो मेरी दाढ़ी के बाल में पानी लगेगा, पानी नालियों में जाएगा। ये वही बाल हैं जिन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की ताज़ीम इस तरीके से की गई। और फिर उसके बाद 30-40 लोग जो उनके साथी थे, बिजनेस करने वाले, अब वो मदीने शरीफ से मक्के की तरफ जा रहे हैं। खत भेज के खबर भेज दी मक्के शरीफ की, हम लोग बस 3 दिन के बाद आने वाले हैं। पूरे मक्के में खुशी की लहर दौड़ गई। आपके बेटे आते हैं तो पटना बीवी बच्चे सब पहुंच जाते हैं। आपका भाई आता है तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गांव के दोस्त अहबाब भी पहुंच जाते हैं। आओ उन्हें रिसीव किया जाए। ऐसे ही माहौल था। जब मक्के वाले बिजनेस करके मक्के वापस आते थे तो बेटियां अपने बाप से मिलने के लिए, भाई अपने भाई से मिलने के लिए, गुलाम अपने आका से मिलने के लिए, आका अपने मालिक से मिलने के लिए, सब दौड़ दौड़ के वहां पर जाते थे और बगलगीर होते थे, मुलाकात करते थे, मुबारकबादियां पेश करते थे। उन्हीं मुबारकबादियां लेने और देने वालों में एक नाम था हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। कहते मैं भी गया होता लेकिन मैं थक गया इंतजार करते करते। मैंने कहा काफिले वालों से डांट कर गए, ये बताओ सब एक दूसरे से गले मिलते हो, ये मेरी बाहें खुली हुई अब्दुल्ला के लिए, मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर गया? सब लोगों ने रो करके कहा अरे अब्दुल मुत्तलिब काबे के मालिक, भूल जाओ अपने बेटे अब्दुल्ला को। बोले क्यों? बोले मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया। इतना सुना तो हुजूर के दादा कहते मैं जमीन पर गिर पड़ा, मैं तड़प गया। जमीन की मिट्टी ने, जमीन ने मेरे चेहरे पर कब्जा कर लिया। मेरी खुशियां काफूर हो गई। मैं चीखने लगा। मेरी 11 औलादें थी जिनमें जनाब अबी तालिब और जनाब हजरत अमीर हमजा जैसे लोग थे, वो सब मेरे करीब आ गए। बोले बाबा तो क्या हुआ? मैंने कहा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सब रोए, मुझे तसल्लियां दी। बाद में सबने कहा बाबा परेशान मत हो, एक ही बेटा आपका इंतकाल किया, अभी 11 बेटे बाकी हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम जैसे हजारों बेटे अब्दुल्ला के नाम पे कुर्बान कर। मेरे बेटे अब्दुल्ला की किस्मत के तुम की यावरी के बारे में तुम्हें इल्म नहीं, कितना प्यारा, कितना मुजस्सम, कितना अनवार, कितना तजल्लियात लेके वो नजर आता था मक्के में। वो कैसे इंतकाल कर गया? वो रोने लगे, मुझे मुझे वो सहारा दो और मुझे मेरे घर ले चलो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने उठाया और जब घर की तरफ जाने लगे तो आपने फरमाया कि रुक जाओ, यही घर मेरी बहू बेटी आमीना का है। वो भी तो अपने शोहर मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है, पहले उसके यहाँ मुझे ले चलो। अम्मी आमीना कहती हैं जब से मुझे खबर लगी थी मेरा शोहर आने वाला है, मैंने घर में दीवारों पर मुश्क लगा दिया, खुशबू लगा दी थी। घर की दरो दीवार को मैंने मुश्क और जाफरान में डुबो दिया था।
मैंने बिस्तर के सिलवटों को खत्म कर दिया था। मैंने अपने लिबास बड़े पाकीज़ा रखे थे, घर के बर्तनों को बहुत साफो शफाफ आईने में तब्दील कर दिया था। मैं ही नहीं, मेरे घर की दीवारें मेरे शौहर का इंतजार करती। मेरा शौहर आ रहा था, मेरा सरताज आ रहा था, मेरे सर का ताज आ रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर मेरे घर में 1 महीने के बाद आने वाली थी। अम्मी आमिना कहती, जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के उनके बेटों के कदम की आवाज मेरे घर पे आए, मेरा दिल धक धक करने लगा। शायद इन्हीं आवाजों में मेरे बेटे के कदम की आवाज भी हो। कहती, मैं दरवाजे पर आ गई। जब मैं दरवाजे पर आई तो देखा तो मेरे खानदान के लोग थे, वो खड़े रो रहे थे। मैंने कहा, मेरा शौहर आ रहा है, आज तो खुशी का दिन है, आप रोते क्यों हैं? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी किसका इंतजार कर रही है? तो मैंने कहा, मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही हूँ। मैंने घर की सारी चीजें बहुत सलीके से रखी हैं, आज इस घर का मालिक आने वाला है। ऐसा क्यों करती हैं लड़कियां? वसीम बरेलवी ने एक हदीस शरीफ की तर्जुमानी की थी, उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें तो सलीका मंद शाखों का लचक जाना। ये हुजूर की हदीस शरीफ है। वो लड़कियां जो अपने शौहर का मुस्कुरा करके इस्तकबाल करती हैं, हदीस के इस टुकड़े पर अमल करती हैं जो शेर की जामियत में खुशबुएं बिखेरता है। अम्मी आमिना कहती, मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे, बोले, ना 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 ना, भूल जा आमिना अपने शौहर को। बोले, क्यों? बोले, तेरे शौहर का मदीने में इंतकाल है। इतना सुना तो अम्मी आमिना चीख पड़ी। वो कहती, मैं जमीन पर गिर गई और रोने लगी। मेरी सारी खुशबुओं की जुल्फें बेतरतीब हो गई, मेरी जमीन, मेरा चेहरा खाक आलूद हो गया, मेरी सारी खुशियों के आशाने उजड़ गए, मेरे ख्वाब जो अच्छी ताबीर देने वाले थे उनके रोशनी के चिराग बुझ गए। मैं बेकरार हो गई, चीख रही थी। कबीले की औरतें मुझे तसल्ली पे तसल्ली देती जाती थी। अचानक अम्मी आमिना कहती है, बहुत देर तक मैं रोती रही तो मैं खामोश हो गई। जब खामोश हुई तो साइलेंट हो गई, सुकूत और जमूत तारी हुआ। खामोश हुई तो अचानक मेरे पेट से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना कहती, मेरे पेट से आवाज आई, अरे मेरी माँ आमिना, मत रो मत रो मत रो, तुझे खबर नहीं है मैं जमीन पर रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला हूँ। ना 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 मेरी माँ मत रो, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अम्मी आमिना फरमाती, मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा, जाओ जाओ अपने कबीले वालों, जाओ अपने घर जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे रहमो करम पे छोड़ दो। कहा, क्यों? कहा, मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी दे रखी है। काफिले वाले अपने घर चले गए। अम्मी आमिना कहती, भी तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना आया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें महीने में ऐसा कोई महीना नहीं होता था, ऐसा कोई महीना नहीं होता था जिस महीने कोई न कोई नबी मेरे ख्वाब में ना आता हो और ये कहता हो कि आमिना मुबारक हो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं। आमिना मुबारक हो, रसूलों का ताजदार आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, नारा लगेगा, नूर वाला आया है। बोलो बोलो बोलो, नूर वाला आया है। जीते रहिए माशाल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को बगदाद दिखा दे। हुजूर अपनी माँ के पेट में, मालूम है आपको हम क्यों कहते हैं आपसे, सरकारों से बच के, क्यों कहते हैं आपसे, बदअकीदों से बच के रहो। हुजूर की अम्मी की कब्र पे डायनामाइट लगा के उनकी कब्र को उड़ा दिया वहाबियों ने और कहा, इनका ईमान सलामत नहीं। आप कहते हैं ये मौलवियों के झगड़े हैं? हाँ, ये जिनकी 4,000 रुपए तनख्वाह है, इनके झगड़े हैं। क्यों किसी से लड़ेंगे मेरे भाई? हुजूर की माँ की कब्र शरीफ पर बम नसब किया और उसे रिमोट से उड़ा दिया और कहा, हुजूर की माँ काफिरा थी, उनका ईमान साबित नहीं। अरे जालिम कहीं के 9-10 महीने हुजूर ने उनके शिकम में कयाम किया। हाँ, हुजूर की हदीस शरीफ अपनी जगह पर मुसल्लम है। मालूम है, हुजूर गुजर जाए तो रोशनी फैल जाती है। जिसका अकीदा है ऊंची बोले। मैंने जो बात कही ऐसे नहीं हवा में उड़ाई, किताबत का जौहर नहीं। एक बुजुर्ग है, उनका नाम है इमाम जलालुद्दीन सयूती। नाम फिर से लूं, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। ये लेटे हुए हैं मिस्र की जमीन पर। मैंने इनका नाम 2 मरतबे लिया, पता बता दिया, फिर भी आप अब कह सकते हैं ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने 75 मरतबे ख्वाब में हुजूर को देखा है। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये कहते हैं, मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने क्या देखा, हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया। हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आ रही थी, हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई, लेकिन एक कब्र में ज्यादा थी, एक कब्र ज्यादा रोशन थी, बकिया सारी कब्रों में रोशनी नजर आई। इमाम सूती फरमाते हैं, मैं उस कब्र के पास गया जिसमें रोशनी ज्यादा थी। मैंने जाके सलाम किया, अंदर से जवाब आया, ऐसा क्यों हुआ? वो कब्र के मुर्दों से बातें करते थे। कोई दिक्कत? हाँ, कश्फ कबूर के मालिक थे, कोई परेशानी?
अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है। इमाम सूती फरमाई जो हुजूर से बातें कर ले, वो हुजूर की उम्मत से बात करने में क्या दिक्कत है। इमाम सूती फरमाते मैंने कब्र के मुद्दों के करीब गया, उसके पास गया जहां ज्यादा रोशनी थी, मैंने कहा ओ कब्र के मुद्दे, उसने कहा क्या बात है। मैंने सलाम किया, अंदर से जवाब आया, बोले कौन हो। मैंने कहा दुनिया मुझे इमाम जलालुद्दीन सूती कहते। बोले क्या करने आए हो। बोले एक सवाल का जवाब। बोले क्या सवाल है। बोले सवाल यह है कि इन कब्रों में रोशनी क्यों है। इतना कितने लोग सवाल क्या करते हैं। कोई खामोश न रहे, सबके फायदे की बात है। इन कब्रों में रोशनी क्यों है। अंदर से जवाब आया बात यह है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। हाय हाय। क्या कोई चुपके से कह सकता है नूर वाला नूर लेके आया है। बोले इन कब्रों में, आवाज कमजोर हो गई, इन कब्रों में। बोले बात तो मेरे पल्ले पड़ गई, दिमाग में आ गई, लेकिन ये बता तेरी कब्र में ज्यादा रोशनी, सब कब्रों में रोशनी है तो तेरी कब्र में ज्यादा रोशनी क्यों है, फिर बोलना। तो उस साहिब कब्र ने कहा बात यह है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय हाय। हुजूर आए भी थे, ऊंची बोलो आए भी थे। क्यों बुलाया आपने गौहर साहब को। इतनी बड़ी सरकारों को आपने कहां से खानका शरीफ से बुलाया। आपने सरकार सुरकानी शरीफ में कहां कहां से लोग चले आते हैं। ताहिर भाई को आपने कहां से बुलाया। बाप रे बहुत दूर है भाई, हमारे इलाहाबाद से भी तकरीबन 400 किलोमीटर के पास रहते हैं। शेख अब्दुल्ला बगदादी के दयार से आए हुए हैं। आला हजरत की ससुराल है रामपुर, समझे आप। तो इतने बड़े मुबारक दयार से आए हुए, क्यों बुलाया आपने। लमा गौहर साहब को आप न बुलाते, पैसे खर्च आपके बच जाते, बच्चों की स्कूल में नशोनुमा में खर्च होते, उनकी पढ़ाई में करते हो। आप मुझे क्यों बुलाया भैया आपने। मैं मुझे आप भाई यार दिल्ली भेज रहे हैं, क्या करना भाई, ये सब क्यों ऐसा करते हैं। मालूम है आपको इसका जवाब क्या होगा। कोई पूछे तो क्या बताओगे। मैं आपको आज जवाब देता हूं, इस जवाब को वो कभी भूलना नहीं चाहिए। पूछा इन कब्रों में रोशनी क्यों है। कहा इन कब्रों में हुजूर आए थे। तेरी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है। कहा बेस ये है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऊंची आवाज में हाथों को उठा के आए थे। और कहा अच्छा अब ये बता तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे। तब उस साहिब कब्र ने कहा मेरी छोटी सी दुकान थी, गुमती पर मैं एक दुकान चलाता था। मेरी दुकान थी, जब शाम को दुकान का दरवाजा बंद करता तो मेरी आदत थी सारे मुनाफे के पैसे जेब में रखता था, लेकिन 1 रुपए का सिक्का निकाल कर एक थैली थी उसी में डाल देता। महीने में 30 सिक्के हो जाते थे, 2 महीने में 60 सिक्के हो जाते थे, और 6 महीने में 250 सिक्के हो जाते थे। 1 साल में वो थैली सिक्कों से भर जाती थी। देखना कौन सुभान अल्लाह कहते हैं। वो थैली सिक्कों से भर जाती थी। बोले फिर जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता वही पैसे निकाल के हुजूर की मिलाद पे खर्च किया करता था। अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमरे में था, मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी थी। ना ना ना, मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार था, तो उस वक्त मैंने सुना कि वो कलाम पढ़ा कि भाई मेरे भाई पढ़ रहे थे, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शब में महफिल बोल शब जाएगी। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ूंगा इंशाल्लाह बाद में। ऐसा कलाम, प्यारा कलाम था। हुजूर की मिलाद के आदाब जिनको आ जाते हैं ना, उनको इसकी रोशनी हासिल हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं नूर वाला आया है, भाई पैसा हमारा है, हम हुजूर के नाम पे खर्च करें, तुझको इससे क्या। हम हुजूर के नाम पे कुर्बान करें, तुझको इससे क्या मतलब भाई। जिसको जिससे फायदा होता है वो उसी से मोहब्बत करता है, उसी के नाम पे लूटता भी है और अपने आप को लुटाता है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में है, सुभान अल्लाह बोलेंगे। कहती है चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें महीने में कोई ऐसा महीना नहीं होता जब कोई ना कोई नबी ना आता है। और कहता हूँ अय आमिना मुबारक हो रसूलों के सरदार आने वाले मुबारक हो। और मालूम है आपको मक्के शरीफ में जो कुआं है ना, कुआं पानी, ये वाटर लेवल बहुत नीचे है भाई, बहुत। आपके यहाँ जो दो दो तीन तीन रस्सियां लगती है ना, तो दो दो तो कई इतनी दो दो तीन तीन रस्सियां वहां लगती हैं आपके यहाँ के हिसाब से। बहुत वाटर लेवल नीचे है। बड़ी मेहनत से एक बाल्टी पानी निकलता है मक्के शरीफ के कुएं से। अब तो समरसेबल का सिस्टम हो गया। अम्मी आमिना फरमाती है कुएं बड़े बड़े गहरे होते मक्के के। मैं पानी निकालने रस्सी और बाल्टी लेके जाती थी, लेकिन कब तक, जब तक हुजूर मेरे पेट में नहीं आए। जब तक हुजूर मेरे पेट में नहीं आए थे, मैं रस्सी भी लेके जाती और बाल्टी भी लेके जाती थी। बाल्टी से मुराद वो चमड़े का छागल है, वरना मुझसे पूछे बाल्टी साबित कीजिए। समझ गए। हुजूर की मां फरमाती है जब हुजूर मेरे पेट में आ गए तो मैंने रस्सी कभी इस्तेमाल नहीं की।
मैं चुप हूं, देखूं कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। वाटर लेवल बहुत नीचे है, पानी बहुत नीचे है भाई। अम्मी आमिना फरमाती है, जब हुजूर मेरे पेट में आए तो मैंने कभी बाल्टी ली तो, लेकिन रस्सी कभी नहीं ली, कभी रस्सी लेके कुएं पर गई नहीं। उनकी सहेली ने कहा कि आमिना क्या बात है, पानी भरने जाती है बगैर रस्सी के और भर के चली जाती है, ये क्या मतलब है? तो अम्मी आमिना फरमाती, चल 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 मेरे साथ, और तू भी बाल्टी ले ले। अम्मी आमिना फरमाती, मैं उसे ले लेती। मैंने कहा बाल्टी रख दी यहीं पर, चल मेरे साथ। वो खड़ी होती, अम्मी आमिना फरमाती, मैं कुएं की मुंडेर पे आती किनारे, और मैं कुएं में झांकती, मैं कुएं में पानी की तरफ मैं देखती थी, पानी मेरे पेट में हुजूर को देख के मचलता था। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। पानी के दाएं बाएं जाने कोई रास्ता नहीं, अब जो मचल रहा है तो कैफियत ऊपर जा रही है। वो पानी मचलते मचलते अम्मी आमिना कहती मेरे तलवे के पास आ जाता था, और मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी, मेरी सहेलियां भी भर लेती थी। यही नहीं, इतना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती, जब तक मैं खड़ी रहती थी पानी भी रुका रहता था। क्यों? नूर वाला आया, आ रहा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद होने वाली है। ऊंची आवाज में बोलिएगा, सरकार की आमद। अम्मी आमिना फरमाती है कि आहिस्ता आहिस्ता रबीउल नूर शरीफ का मुबारक महीना आ गया। यही महीना आया, आया है बुलावा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद का महीना आ गया। अम्मी आमिना फरमाती है, चांद की 11 तारीख आ गई रबीउल नूर शरीफ की, जब मेरे शिकम से हुजूर जमीन पर तशरीफ लाने वाले थे। हुजूर की पैदाइश पर खुश हो जाए, आपकी नस्लों को अल्लाह खुश रखे। अम्मी आमिना फरमाती है कि रात की चांद की 11 तारीख थी, मैं अपने घर के आंगन में लेटी हुई, अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी। अचानक मैंने क्या देखा, तारों के झुरमुट में आसमान के सारे तारे सिमट गए हैं, और सिमट करके मेरे घर के आंगन की तरफ गिरने वाले हैं। मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या है? आवाज आई, ना 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 आमिना डर मत, मुबारक हो, तेरे शिकम से रसूलों के सरदार आने वाले हैं। मुबारक हो, आमिना का लाल आने वाला है, आमिना मुबारक हो, तेरा लाल आने वाला है। और कहती कि मैंने देखा कि काबे की छत पर एक झंडा नस्ब किया गया, एक झंडा मेरी छत पे और एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पे नस्ब किया गया। और उसके बाद अम्मी आमिना कहती है, मैं घर में बैठी थी, कोई दर्द नहीं हुआ डिलीवरी का। डिलीवरी का दर्द बहुत होता है साईं, मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ, बहुत होता है दर्द। मालूम है साइंस क्या कहती है? एक साइंसदान ने यह कहा कि डिलीवरी में एक औरत को बच्चा पैदा करते वक्त इतना दर्द होता है, अगर वही दर्द 60 या 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं। और भाई, ये मर्द मर भी सकते हैं, इतना दर्द होता है इन माओं को। लेकिन अफसोस की बात है कि माएँ इतनी तकालीफ को झेल जाती हैं, लेकिन बच्चे अपनी माँ की थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, अपनी माँ को जूतों से मारते हैं, अपनी माँ को ठोकरे मारते हैं, अपनी माँ को गालियां देते हैं, अपनी ही बेटी की शादी के मौके पर अपनी माँ को दावत नहीं देते। कहते हैं बूढ़ी माँ पागल हो गई है, छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा कहीं होता है? हाँ, बगदाद शरीफ में शेख बशीर गिलानी एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कोरोना के दौर में मेरी बच्चियां मेरे बच्चे सब बीमार पड़ गए थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयां नहीं मिलती थी, और पूरा शहर जाम था, कहाँ जाता बगदाद शरीफ में, गौस पाक के रोजे पर भी नहीं आ पाता था। बच्ची बच्चियां मेरी बीमार, वो खांसते हुए, वो परेशान, तो मैं समझ गई ये सब मर जाएंगे, रोने लगा। फिर मुझे एक ही चीज समझ में आई, मैंने अपनी माँ को बिस्तर से उठाया और उसे तख्त पे लाके बिठा दिया, और उसके पैर के नीचे मैंने वो बड़ा वाला जो होता नहीं टब, प्लास्टिक का टब जिसमें बच्चे नहाते हैं, वो लाके अपनी माँ के पैर के नीचे रख दिए। एक लोटे में पानी लेके आया, अपनी माँ के पैर धुले, और पैर के जो धुलने का जो घुसाला था पानी था वो टप में आ गया। फिर मैंने अपनी बच्चों को, बीवी को, बेटियों को बुलाया, मैंने कहा लाइन से बैठ जाओ, सब लाइन से बैठ गए। मैंने अपनी माँ के पैर के धोवन को गिलास में भर भर के अपनी सारी बेटियों को पिलाना शुरू किया, और मैंने कहा सुनो, किसी और बीमारी की वजह से तुम्हें मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि मैंने तुम्हें अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया है। यार माँ माँ होती है मेरे भाई, माँ को नफरत से मत देखा करो। अच्छा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों की माँ घर पे जिंदा है, बताएं। माशाल्लाह, एक मिनट बोले, उठाए रखिएगा, बोले अय अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर से बोले, फिर से बोले, ऊंची बोले, इंशाल्लाह वादा करो कि जब कभी भी अपने घर से बाहर जाओगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाओगे। बोलो भाई, बोलो इंशाल्लाह। जो दिक्कतें पेश आए अपनी माँ से कहा करो इंशाअल्लाह। सरकार महबूब इलाही कहते हैं कि मेरी माँ जब तक जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैं अपनी माँ की कब्र के पास जाता था, और माँ की कब्र पे बैठ के मैं दुआ करता था, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, और मेरा काम बन जाया था। माँ मेरा टॉपिक नहीं, वरना बात करता, बात तो हुजूर की आमद आमद की है।
जरा फिर से बोलें, सरकार की आमद, नूर वाला, नूर वाला। अम्मी आमिना फरमाती मैं डिलीवरी के वक्त कोई तकलीफ मगर नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई घुटन नहीं हुई। अम्मी आमिना फरमाती है मेरी 3 सहेलियां मेरे करीब बैठी थी जब हुजूर पैदा होने वाले थे। बातें याद रहेंगी। अम्मी आमिना फरमाती है मेरी 3 सहेलियां मेरे करीब बैठी थी जब हुजूर मेरे शिकम से जमीन पे तशरीफ लाने वाले थे। उनमें एक का नाम है मखदूमा शिफा, क्या नाम है? दूसरी कनीज थी जिनका नाम था सूबिया। किसी एक दो किताब में सोएबा लिखा होता है, सूबिया सूबिया, वो कनीज थी। तीसरी औरत का नाम था हजरत उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन कौन है? ये हुजूर की माँ की सहेली है। इनके इंतकाल के बाद हुजूर ने कहा था उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ। हुजूर ने इनसे कितनी मोहब्बत की। जब उनसे इतनी मोहब्बत की तो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते। लोग कहते हैं कि हुजूर ने अपनी माँ की खिदमत करने का कोई दकीका नहीं पाया, लेकिन हुजूर ने कहा क्या है मालूम है अपनी माँ के बारे में? मेरे आका इरशाद फरमाते काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। जुमले सुनिएगा, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाबे आयशा के करीब, ये रियाजुल जन्ना की तीसरी सफ के पास गेट है। काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाबे आयशा उस दरवाजे पे खड़ी होकर बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से निपट जाऊं। इससे बड़ा ऐलान क्या होगा माँ के फजाइल। दुआ करो अल्लाह हमारी माओ को शिफा अता फरमाए। हमारी माँ का इंतकाल हो गया। हमारी माँ का इंतकाल मालूम है इमाम हुसैन से मेरी माँ इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरे की 10 तारीख को हुआ। अल्लाह की मर्जी। अभी भी घर से निकलता हूँ तो उनकी कब्र पे बहुत देर देर तक बैठता हूँ। मेरे आपकी माँ अगर घर पे है तो उसका एहतराम करें, नहीं है तो उसकी कब्र पे जरूर जाया करें। दिल से बोले इंशाअल्लाह। मेरे आका की माँ कहती मेरी 3 सहेलियां थी, एक तो शिफा थी, एक सोबिया थी जो कनीज थी, और एक उम्मे ऐमन। मुझे लेके बोले भाई हुजूर की पैदाइश पर घर पे कितने लोग थे? बोले 4 लोग थे। अचानक अम्मी आमिना कहती कि मैंने क्या देखा, 3 और औरतें मेरे घर पे आ गई। 3 और औरतें मेरे घर पे आ गई। मैंने कहा आप भाई आप कौन है इतने बनठन के आई हैं? आप कौन है इतना बन संवर के आई, इतना मेंटेन हो के आई? आप हैं कौन? देखना कौन। उनमें से एक ने कहा ए मखदूमा आमिना मैं हाजिरा हूं, हाजिरा। बोले मेरे ही बेटे की ठोकर की वजह से जमजम का पानी निकला है, मेरे ही गुजरगाह को अल्लाह ने इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह का। मैं हाजिरा हूं, हाजिरा। अम्मी आमिना फरमाती ओ आप हाजिरा हैं? बोले हाँ। बोले ये कौन है आपके बगल में? तो उसने कहा मैं सारा हूं, सारा। सुभान अल्लाह। नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दीजिए। तफसील फिर किसी मौके पर। बोले आप बोले सारा है। बोले सारा के बगल में कौन है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ये नाम जो लिया जा रहा है इस नाम की इस कुरान में एक सूरह मौजूद है, सूरह मौजूद है। हुजूर की मां फरमाती आप बोले हाजिरा, अच्छा आप बोले सारा, अच्छा आप कौन है? तो उस औरत ने शर्माते हुए कहा मेरा नाम मरियम है, मरियम। बोले मरियम? बोले हाँ। बोले वो तेरा बेटा ईसा? बोले हाँ हाँ। बोले अरे मरियम तू ईसा की माँ है? बोले हाँ। बोले वो ईसा नबी? तो जनाबे मरियम खड़ी हो गई। बोले आमिना कैसी बातें करती है, अरे मैं एक नबी की माँ हूं, तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो नबियों में रहमत नकब पाने वाला, मुराद है गरीबों की बरलाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अम्मी आमिना फरमाती है कि वो मुझसे कहा बीबी मरियम ने तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। खुशी मनाई गई। उतने में अम्मी आमिना फरमाती सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखते हैं, अम्मी आमिना फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां, अम्मी आमिना कहती दंदनाती हुई कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी इधर से उधर, इधर से उधर घूमती थी मेरे घर में। मैंने उन लड़कियों से कहा ए लड़कियों तुम कौन हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते तुम कौन हो? तो उन लड़कियों ने कहा अम्मी आमिना हम जमीनी नहीं हम आसमानी है, हम जमीनी नहीं हम आसमानी। बोले हो कौन तुम, तुम्हारा ताल्लुक किस कबील से है? बोले हम किसी कबील के नहीं। बोले फिर कहाँ की हो? उन लड़कियों ने कहा अम्मी आमिना हम जन्नत की हो रहे हैं, हुजूर के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। मेरे इमाम ने क्या कहा था, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा उस दिल अफरोज साहब पे लाते, हाथों को उठा के बोलो उस दिल अफरोज साहब पे, हाथों को लहरा के उस दिल अफरोज साहब पे। अम्मी आमिना फरमाती खुशियां ही खुशियां थी, हर तरफ दरूद के नगमे गूंज रहे थे। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:32 पे, कितने? फिर से बोलो, फिर से बोलो।
4:32 पे अम्मी आमिना के घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबे ज़ाहिरी जिस्म मुबारका के साथ जमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। जरा हाथों को डाके फिर से बोल दो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। बोलो बोलो बोलो, अपने माँ बाप की मगफरत के लिए ऊंची बोलो। अम्मी आमिना फरमाती है, हुजूर मेरे शिकम से जमीन पर तशरीफ लाए, मैं पहाड़ों के शहर में थी। मेरे बाएं तरफ कोहे फारा, सामने सफा की पहाड़ी, सामने मरवा की पहाड़ी, पीछे शेबी अबी तालिब की ये पहाड़ियां, हजारों पहाड़ियों का शहर, जहां पर 5614 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा, गारे सोर, जहां 3500 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ मेरा छोटा सा घर, उस घर में एक कमरा, कमरे की एक खास जगह, मैं उस घर में थी और मेरा बेटा जब मेरे शिकम से जमीन पर तशरीफ लाया, इतनी रोशनी फैली, मैंने अपने घर से 1000 किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम के बादशाहों की महलों की दीवारों पे चमक देख ली थी। बैठे बैठे अपने घर में क्यों देख ली थी? तो लोगों ने कहा नूर वाला आया, नूर लेके आया है। इतनी चमक पैदा हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की, और जब तस्बीह बयान की उसके बाद हुजूर चले गए और जाके दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। जब हुजूर सजदे में है तो अम्मी आमिना कहती है मुझे मुबारकबादियां मिलने लगी। तो थोड़ी देर हुजूर जब सजदे में, तो सबसे पहले तारीख में आता है हुजूर को जिस औरत ने गोद में उठाया था, ये नाम याद रखें, उसका नाम था मखदूमा शिफा। क्या नाम था? मखदूमा शिफा कहती मैं आगे बढ़कर के, अम्मी आमिना इजाजत दे तुम्हें हुजूर को उठा लूं? कहा बिल्कुल उठा लें। जैसे हुजूर को अम्मी आमिना से पूछ करके मखदूमा शिफा ने उठाया और आवाज दी, ऐ सोबिया, ऐ उम्मे ऐमन, आ जाओ हुजूर को नहला दिया जाए। देखना आ जाओ हुजूर को नहला दिया जाए। पता चला हुजूर तो नहाए हुए पैदा हुए थे, हुजूर तो नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा आंखों में सुरमे लगा दिए जाएं, पता चला कि हुजूर की आंखें बगैर सुरमे के चमक रही हैं। किसी ने कहा कि जरा हुजूर के जिस्म पाक पर खुशबू मल दी जाए, पता चला सारी खुशबू हुजूर के जिस्म पाक से आ रही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने काबे का तवाफ किया मुताफ आंगन में, और उसके बाद जेब से चाबी निकाली, मैंने बाबे काबे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जब अंदर चला गया तो वहां पत्थर के मुजस्समे रखे हुए थे, जिन्हें वो लोग पूछते थे, अपना खुदा कहते थे माज़अल्लाह। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे मैं काबे के अंदर गया, मैंने क्या देखा, वही पत्थर के मुजस्समे धड़ाधड़ जमीन पर गिरने, जमीन पर गिरने लगे। तो कहते हैं मैंने अपनी दाहिनी हाथ की पेशानी, अपनी हथेली अपनी पेशानी पर मारी। मैंने कहा भाई मैं ये क्या देख रहा हूं? तो उन पत्थरों से आवाज आई, अरे अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो? घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन बेकरार रहती हैं। तुम्हें पता है तेरे घर में कौन आया है? शबनम जबलपुरी ने कहा था, शम्म की लो न बुझी और न लहराई। पत्ते की नाजुकी देखें आप। शबनम साहब मेरे बड़े अच्छे मोहसिन दोस्त में थे, अभी उनका इंतकाल हुआ, बहुत बड़े शायर थे। नाक का ये मतला देखें आप, मैं अपने बड़ों के कदम चूमते हुए, शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई। शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है, और लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा कि पत्थर के मुजस्समे जमीन पर पड़े थे। मैंने कहा मैं क्या देख रहा हूं? तो उन पत्थरों से आवाज आई, अरे अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो? अरे घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन बेकरार रहती हैं। हुजूर जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। रवायतों में लिखा है पूरब के जानवर पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ, और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते, और सारे जानवर जब इकट्ठा होते तो आपस में यही कहते, यार मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हुए हैं, मुबारक हो आमीना का लाल आया हुआ है। समुंदर की मछलियां समंदर की लहरों पे आती और कहती, ऐ जमीनों आसमान वालों खुश हो जाओ, आमीना का लाल आया हुआ है। तितलियां गुलिस्तान में हुजूर की नातें पड़ती थी। आमीना कहती मैं खुश थी, मेरे दरवाजे पर अब्दुल मुत्तलिब आ गए, जल्दी से काबे का दरवाजा बंद किया, दौड़े हुए अपने घर पे आए और दरवाजा बंद था। आपने दस्तक दी, अंदर से आवाज है, कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब, इस घर का मालिक, पैदा होने वाले का दादा, उसका बाप। दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज है, अरे अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं, अभी तुम्हारा नंबर कहां से आ जाएगा? कहते मैं दरवाजे पर खड़ा था, बहुत देर के बाद दरवाजा खुला, लोगों का इस्तकबाल करते हैं। उस दिन खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल। मैं अंदर गया, सीधे डिलीवरी होम में। बच्चे जहां पैदा होते हैं ना, वहां बड़ी बदबू होती है, ब्लीडिंग की वजह से बहुत घुटन, बहुत तापुन, बहुत ज्यादा चीख पुकार की कैफियत होती है, बहुत ज्यादा सरासिंगी, खौफ और दहशत का माहौल होता है, समझे आप।
मालूम है ये कलेजा माओ का है जो इस कदर मुश्किलात की राह का मुसाफिर बनती है। तो हुजूर के दादा कहते हैं मैं सीधे डिलीवरी होम चला गया, जचा खाने चला गया। मैंने क्या देखा, खुशबू ही खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सामने मेरी बहू बेटी आमिना बड़े सलीके से बैठी हुई थी। मुझे देखा तो खड़ी हो गई और कहा दादा जान मुबारक हो, मेरे ससुर अब्बू हुजूर तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा बेटी मुबारक हो, आमिना के लाल की आमद हुई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हुजूर कहाँ है? तो अम्मी आमिना फरमाती हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। जब मैंने देखा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए थे, सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अय आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर को दिखा दे। हुजूर को देखने के लिए मैंने बूढ़ी आंखों में जवानी की दुआ मांगी है। हुजूर को अपनी गोद में रखने के लिए मैंने अपने बाजुओं की मछलियों को की जिंदगी की भीख मांगी है। मैंने रब से कहा था मेरे मौला मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक तेरा हबीब जमीन पर ना आ जाए। अब हुजूर आ गए हैं तो मुझे हुजूर को देखने दे। रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई। माहौल को तिलावत कुरान किए हुए अम्मी आमिना फरमाती है मैंने हुजूर को उठाया और उठा करके जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया। जैसे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हुजूर आए, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी गोद में हुजूर आए, ऐसा लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई, पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अय आमिना अगर जहमत ना हो तो हुजूर की आंखें तो दिखा दे। क्या भाई, अगर थक गए तो फिर थकावट दूर करने के लिए फिर हुजूर ही की बातें होंगी, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। इससे बड़ा तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले सुन, अगर टिकट फ्री में होता तो मैं कल तक सबको साथ बर्दाश्त लिखी, लेकिन आपकी यादें आपके एहसानात मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। कहने मैं आप बहुत खुशकिस्मत है आप और मैं आपके पैरों को चूम लूं। चलोगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह? अभी दादा की आमद की खुशी मना रहे हैं लोग, कह रहे हैं नूर वाला आया है, हुजूर की आमद आमद का मामला है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अय आमिना अगर जहमत न हो तो मैं हुजूर को गोद में ले लिए खड़ा हूं, तो हुजूर के चेहरे से नकाब तो उठा दे। जनाब आमिना कहती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से जैसे नकाब उठाई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं चीख पड़ा, हुजूर की मुबारक पेशानी को देखा, हुजूर की भौं शरीफ को, चश्मा ने नूर को देखा, हुजूर के लब को देखे, रुखसार को देखा, जकन को देखा, हुजूर की मुबारक सरे अक़दस को देखा। मैं चीख पड़ा, मैंने कहा आमिना। बोले क्या बात है बाबा जान? बोले खुदा की कसम मैं बूढ़ा हो गया लेकिन आज तक इतना हसीन चेहरा मैंने किसी बच्चे का नहीं देखा। बोलते 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 रहिएगा, आज तक मैंने इतना हसीन चेहरा किसी बच्चे का नहीं देखा। आवाज आई अय अब्दुल मुत्तलिब देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। अल्लाह 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 अल्लाह। आला हजरत के सगे मजले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार। जरा खुश हो जाओ और बोल दो फिर से सरकार की आमद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर के हुस्न में डूब गया, हुजूर मेरे गोद में थे, लग रहा था इतना हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। आवाज आई देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया, जिसने हुजूर को देखा फिर किसी को न देखा। चीख पड़ा मोरा हार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार। आका करीम कितने हसीन थे। करीब पूछा आपने इन उलमा कराम के पास कभी जाओ असर मगरिब की नमाज के बाद, 100 रुपए इनकी इनके कदमों के नीचे रखो और सिर्फ इतना पूछो कि हुजूर किसी काम से नहीं आया, बस एक ही काम लेके आया हूँ, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि हुजूर के होंठ कैसे थे, हुजूर का चेहरा कैसे था, हुजूर मुस्कुराते कैसे थे। हम 70 साल 60 साल 40 50 के हो रहे हैं, आज तक हमें हुजूर के हुस्न से मुलाकात नहीं। हमने जानने की भी कोशिश नहीं की कि हुजूर की आंखें कैसी थी, हुजूर के लब कैसे थे, हुजूर का बतन मुबारक, हुजूर का सदर मुबारक, हुजूर की उंगलियां कैसी थी। मालूम है 8 साल का बच्चा है अबू किसाफा, ये मदीने के देहात में रहता है। बाप मर गया तो माँ ने कहा बेटे परेशान मत हो, मैं झाड़ू पोछा लगा लगा के तुझे तेरा पेट पालूंगी। 2 रोटी मिलती माँ को, एक माँ खाती एक उसका बेटा अबू किसाफा खाता। माँ बूढ़ी हो रही थी, अबू किसाफा परेशान हो गया। उसने कहा माँ ये एक एक रोटी में कब तक बात बनेगी, बनेगी नहीं बिगड़ जाएगी। तो माँ ने कहा बेटे मैं क्या करूं, एक काम कर। बोले काम क्या है? बोले इस करीब में एक शहर है जिसे लोग मदीना कहते हैं, उसमें मेरी एक सगी बहन रहती है, तेरी खाला है, जाके उसके पास उसकी भेड़ बकरियां चराया कर, उसकी भेड़ बकरियां चराया कर, उसके बदले में तुझे पेट भर खाना मिल जाएगा, जो रोटियां मुझे यहाँ मिलती हैं उससे मेरा पेट भर जाएगा। अबू किसाफा अपनी खाला के घर आ गया, कहते मैं मदीने आ गया, रोजाना अपनी खाला की बकरियां लेके जाता, 2 रोटियां लेके जाता और दोपहर में खाता
और बकरियां शाम को चरा के वापस आता। ऐसे ही दिन बढ़ते गए, सुबह से शाम, शाम से सुबह होती गई। अबू किसाफा कहते हैं एक दिन मैं मदीने की गली से बकरियां लेके जा रहा था, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह के, उधर से आमीना के लाल आ रहे थे। आए बोलो 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 सुभान अल्लाह। हुजूर कितने नाजुक थे। शायर ने कहा था जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, बोसे हजरत जिब्रील से जाग उठते हैं। हाय 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 कवर भाई बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई, साहिब दीवान साहब बैठे हुए हैं, मेरे ये मोइन भाई जितने मर्जी पे बैठे हुए हैं। जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, वो सही हजरत जिब्रील से जाग उठते हैं। सूफी साहब से एक शख्स ने पूछा था मुझ में और हुजूर में क्या फर्क है, पर मैं पागल ये ख्याल तूने दिमाग में क्यों लाया। बोले नाना हम पढ़े लिखे नहीं, कुछ तो बता दो कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है। बोले अरबों खरबों गुना फर्क है, लातादाद फर्क है। बोले एक फर्क बता दो कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है। सुनेंगे आप, हम में और हुजूर में क्या फर्क है आप। तो सूफी साहब ने जुमला कहा था, वो चला गया सर पकड़ के। सूफी साहब ने कहा एक आसान ये भी सुन ले, तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी। कहा क्या? कहा तुम अगर, सूफी साहब ने तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है, तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना न खाए तो खाना मर जाए। तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, और हुजूर अगर खाना न खाए तो खाना मर जाए। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी। तुझमें और हुजूर में एक फर्क ये भी है। अबू किसाफा कहते हैं मैंने हुजूर को देखा तो दंग रह गया, ऐसी आंखें कभी न देखी, ऐसे लब कभी न देखे, ऐसी उंगलियां कभी न देखी। अल्लाह सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अबू किसाफा करीब आए, बोले आप कौन हैं? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया जिसका कोई नहीं मैं उसका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले जिसका कोई नहीं मैं उसको, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। कुरान मुझ पर नाजिल हुआ, अल्लाह का रसूल हूँ, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेके जाने के लिए मैं आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतना कह के हुजूर चले गए। और अबू किसाफा वो लड़का कहता है कि मैं 10-12 साल का था, और हुजूर जब गए तो मेरा दिल भी लेके चले, मेरा दिल भी लेके चले। मैं बकरियां चराने आया तो मेरा दिल न लगा, दिल तो दिलवाने ने ले लिया। अल्लाह अल्लाह। अबू किसाफा कहते हैं मेरा दिल न लगा, मैं रोने लगा। शाम को बकरियां लेके खाला के पास, रात आया तो बिस्तर पे हुजूर की याद आई। फिर मैं दूसरी बकरियां लेके गया और बकरियां अल्लाह भरोसे छोड़ दी जंगल में, और फिर दिन भर आके हुजूर को देखने लगा, हुजूर को ताकने लगा। बोले 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 सबसे बड़ी इबादत में लग गया। क्यों? दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही पे हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही पे हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम्ही तो हो। अबू किसाफा कहते दिन भर हुजूर को ताकता रहता था, ताकता रहता। शाम को बकरियां लेके घर वापस चला आता, किसी को नहीं खबर थी। और फिर इसी अय्याम में मैं कलमा पढ़ के मुसलमान, हुजूर को देखा तो फिर किसी को देखने की ख्वाहिश न हुई, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अबू किसाफा कहते हैं रोज आना बकरियां लेके मैं आता जाता आता। एक दिन मेरी बकरियां दूसरों के खेत में चली गईं, शिकायतें मेरे घर आ गई। गर्मी में बैठे हुए अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए। अबू किसाफा कहते हैं कि बकरियां मेरे खेत, मेरी मेरी बकरियां दूसरों के खेत में चली गईं, शिकायत मेरे घर पे आ गई। मैं शाम को बकरियां लेके आया ना, तो फिर मेरी खाला बड़े गजब में थी, बड़ी नाराज थी। जब मैंने गौर से देखा तो मेरी खाला के बगल में मेरी माँ बैठी। मैंने कहा अम्मी क्या बात है? बोले तेरी खाला बहुत नाराज है। मैंने कहा क्यों खाला क्या बात है? बोले सुन, रोटियां मेरी खाता है और कलमा मुसलमानों के नबी का पढ़ता है। वादा कर अपनी माँ के सामने, बेवा मेरी बहन के सामने, कि कल से मुसलमानों के नबी के पास नहीं जाएगा, लात मार के तुझे भगाऊंगी घर से, भूखा मर जाएगा जमीन पर। तू यतीम था इसलिए तुझे मैंने घर पे रख लिया, इस मोहब्बत में तूने हुजूर की गुलामी अख्तियार की है। वादा कर अपनी माँ के सामने कल से मुसलमानों के नबी के पास नहीं जाएगा। अबू किसाफा अपनी माँ के पास गए, रोने लगे। बोले माँ रो मत, क्या चाहती है? माँ ने कहा बेटे इस फटे हुए दुपट्टे का वास्ता, तुझे मरे हुए बाप का वास्ता, मत जाया कर मोहम्मद के पास, तेरी खाला तुझसे नाराज हो रही है, वरना तुझे घर से भगा देगी, भूखा मर जाएगा। तो अबू किसाफा ने अपनी उंगलियों से माँ के आंसू पोंछे, और पोंछने के बाद बोले अबू किसाफा अम्मी ना रो ना रो ना रो, तू जो कहेगी मैं उस पर अमल करूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता। बोले क्या?
बोले एक मरतबे चल के तुम भी मेरे नबी को देख लो। हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारी भी जबान से आवाज है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। माँ ने कहा क्या? तो अबू किसाफा बोले मेरी माँ कल चल के तुम मेरे नबी को देख लो, एक मतलब एक शर्त मेरी है, उसके बाद से जो मैं जो कहोगी मैं उस पर अमल करूंगा। अबू किसाफा की खाला ने कहा हाँ हाँ बहन चल चल चल, कल चल के इसके नबी को देख लेंगे और परसों से ये नबी के पास जाना बंद कर देगा। जुमला रिवर्स करता हूं साहिबो। खाला ने कहा सुन सुन मेरी बहन सुन, हाँ चल करके कल इसके नबी को देख लेते हैं, परसों से अपने नबी के पास जाना बंद कर देगा। अबू किसाफा ने चुपके से अपनी माँ के कान में कहा वो तो कल पता चलेगा परसों से जाता कौन है। वो तो कल पता चलेगा। सुबह हुई तो अबू किसाफा कहते हैं मैं आगे आगे था और मेरी माँ मेरे पीछे पीछे थी, मेरी खाला मेरे पीछे पीछे, मेरी माँ के पीछे, तीनों चलते रहे। जब दरबार मुस्तफा करीब आया, इरादा था, नियत ये थी, मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं, यूं खो गए सरकार के अल्ताफो करम में, ये भी तो नहीं होश की क्या मांग। जनाब अबू किसाफा कहते हैं मैं हुजूर के कदम शरीफ के करीब बैठ गया, मेरी माँ हुजूर के सामने बैठ गई, मेरी खाला मेरी माँ के पीछे बैठ गई। अब अंदर की सीनरी देखें, अल्लाह अल्लाह। अबू किसाफा कहते हैं देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। अबू किसाफा कहते हैं मैंने देखा तो मेरी माँ हुजूर को देख रही थी, हुजूर मेरी माँ को देख रहे थे और मैं बीच में बैठ के दोनों को देख रहा। मैंने देखा तो हुजूर मेरी माँ को देख रहे थे, मेरी माँ हुजूर को देख रही थी और मैं दोनों को देख रहा था। फिर मैंने माँ के दुपट्टे पकड़े, अम्मी जान, बोली क्या बात है? मैंने कहा हुजूर यही है। मैंने कहा अम्मी जान हुजूर यही। मैंने कहा चुप, जैसे बोले कि अम्मी जान हुजूर यही है। मैंने कहा चुप। बोले क्या हुआ? खुदा की कसम, माँ ने कहा मेरे बेटे अबू किसाफा, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और हार सिंगार तुम्ही से है बगियन में बहार। अबू किसाफा कहते मेरी माँ हुजूर को देखती रही रोती रही, हुजूर को देखती रही रोती रही। फिर मुझसे उसने मुखातिब होकर जुमला कहा था, तारीख में लिखा है, दिल कहे तो आप इसे याद कर ले। अबू किसाफा कहते मेरी माँ ने कहा अबू किसाफा। मैंने कहा जी माँ क्या बात है? बोले सुन, इस माँ का दामन छोड़ देना, इस मोहम्मद का दामन कभी ना छोड़ना। हाय हाय हाय, ऐसा तुझे खालिक ने सरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, तालिबे दीदार बनाया। जनाब अबू किसाफा की उस हुस्न की बात जो आज सुन रहे हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पहले हुजूर को लेके बातें की। हुजूर का चेहरा देखा तो तड़प गए, बोले आमीना। फरमाया क्या बात है? कहा आमीना अगर इजाजत दो तो काबे की जियारत हुजूर को करवा दूं। काबे की ज़ियारत मैं अपने हुजूर को करवा दूं। आवाज आई अय अब्दुल मुत्तलिब, तुम क्या मेरे हबीब को काबे की ज़ियारत करवाओ, काबा खुद मेरे हबीब की ज़ियारत। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर को लेके निकला। किधर से निकले? ये हुजूर की पैदाइश का सेंट्रल पॉइंट है, ये खड़ा है। इधर देखें तो बात समझ आ जाएगी किधर ये खड़ा है। ठीक है, सामने काबा है, काबा से पहले सफा मरवा की पहाड़ है, दाएं तरफ ये शेब अबी तालिब है। इस एरिए को शेब अबी तालिब कहा जाता है। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी यहाँ बंद किया गया। अभी हालात अच्छी नहीं, कोई भी आपको मुसलमान समझ के मार देता है, लेकिन आप किसी को हिंदू भाई समझ के नहीं मार सकते। आपको वही करना है जो आपके मुल्क के ख्वाजा गरीब नवाज में। कोई कहता है कि मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हिंदू भाइयों की दुकान से सामान, अपना दीन उसे दे आप, अपना कल्चर उसे दे आप। समझ रहे हैं आप? गरीब नवाज के शहर में अजमेर शरीफ में अगर कोई हिंदू लड़की जवान होती थी तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा। गरीब नवाज को रहा कर, कुछ भी कर ले हुकूमत, कुछ भी कर ले, लेकिन इतना याद कर लें कि फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। सुबह कयामत तक आवाज आती रहेगी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का, बस रसूलुल्लाह का। हम तो आजमाइश के लिए पैदा होते हैं। जब 10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा है एक अखबार वाले ने, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? उसने कहा चुप, मुझसे पूछता है बड़ा होके क्या बनेगा? हम फलस्तीनी है, फलस्तीनी। हम बड़ा होने के लिए पैदा ही नहीं होते, हम तो बचपन में ही बैतुल मुकद्दस के नाम पे कुर्बान हो जाया करते हैं। अल्लाह अल्लाह।
हमें तो कुर्बानी देने के लिए पैदा किया गया। हम तो आजमाइश के में हमेशा रहने वाले लोग, ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन आपको जो खिदमत आपके अजदाद ने गैरों की है, वो खिदमत फिर से करना पड़ेगा। आप नफरत ना करें, कोई आपसे कितनी भी नफरत करे, ये उसके अपने बुरे ख्यालात पर मुनहसिर है। दुआ करो हिंदुस्तान में मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाए। कोई भी बेकसूर जेलों में हिंदू हो या मुसलमान हो, अल्लाह उसकी रिहाई का इंतजाम फरमाए। मेरी दिल से दुआ है हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी शाह साहब किबला के लिए, अल्लाह उनकी भी रिहाई का इंतजाम फरमाए। जिन मज़ारात को शहीद किया जा रहा है बिलावल की जमीन पर, मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके फैजान को जाहिर फरमा दे। हिंदुस्तान में 70% हिंदू मजहब के ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था, जिनकी उम्मीदें बुजुर्गों से बहुत जबरदस्त जुड़ी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं 1.5-2 महीना पहले बगदाद शरीफ गया था, मेरे साथ 4 हिंदू भाई बगदाद गए, वो के बगदाद चले गए और आप ये सुन के सुभान अल्लाह ना गए। अरे मैं 2 तो पंजाब के पंजाबी भाई थे और 2 हमारे इधर के थे हजारीबाग। हजारीबाग के मालूम है, जो 2 हजारीबाग के थे, बड़े दूर थे, बहुत मस्त थे। उनमें से एक गौस पाक की बारगाह से, एक बुजुर्ग गौस पाक की बारगाह से निकला, मैं वहां पर था। मैंने कहा भाई खैरियत है? तो मालूम है उसने क्या कहा? रोने लगा वो हिंदू भाई, रोने लगा वो। मैंने कहा क्या हुआ? सामने गौस पाक की बारगाह है, रोते क्यों हैं? इतनी बड़ी मुबारक जगह की ज़रूरत। उसने कहा कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं क्यों पैदा हुआ था मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन जब से आपके रोजे को देखा है, दिल कह रहा है बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। आज मेरी पैदाइश का मकसद मेरी समझ में आ गया। उसकी अपनी सोच थी और ये मुबारक सोच थी। मेरी दुआ है अल्लाह उसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे आप और सरकार गौसे आजम, इन बुजुर्गों ने इस्लाम बताया। मेरा टॉपिक इस्लाम में हुजूर की पैदाइश है, लेकिन अभी हालात खराब हैं। इस हालात को बेहतर बना सकता है कोई और नहीं, सिर्फ आप। मैं गोवा बहुत जाता हूँ, गोवा में जलसे बहुत होते हैं। मेरे दोस्त हैं, एक मतलब मैं गोवा में, वो एयरपोर्ट के करीब एक मीटिंग चल रही थी और बड़ी खास मीटिंग थी। लोग मुझसे सवाल करते तो मैं जवाब देता था। तो लोगों ने पूछा था कि भाई दीन कैसे फैलाया जाए। ये उलमा मजहबियात से, इल्मियात से, अदबियात से वाकिफ हैं, इनको मसले मसाइल पता है, ये दीन फैला सकते हैं। जब आपको नहीं पता तो आप कैसे फैला सकते हो? तो मैंने कहा तुम भी फैला सकते हो। बोले कैसे? मैंने कहा बाजार जाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा जब तुम्हें चीनी तोलने वाला, सब्जियां तोलने वाला, जब तुम्हें तोलता है 2 किलो ना, तो अक्सर उसमें 5-7 ग्राम ज्यादा दे देता है, सही है कि नहीं? और अगर बेचारा अगर ना बढ़ा के दे तो लोग कहते क्यों बे, क्या सोना तोल रहा है? ऐसा कहते हैं, क्यों बे क्या सोना तोल रहा है? तो मैंने कहा अब जब जाना बाजार, जैसे वो 5-7 ग्राम ज्यादा बढ़ा के दे, तो उससे कहना भाई 5-7 ग्राम कम दो, चलेगा, ज्यादा मत दो। तो पूछे क्यों? तो कहना मेरे नबी ने मना किया। ये तकवे के खिलाफ है, कहना कि ना उसूल दीन मुस्तफ़ा के खिलाफ है। लोग बोले यार अच्छी बात है, कल देखेंगे। खुदा की कसम, इन सरकारों के सीने में इल्म रसूल, इल्म अली, इल्म रजा का फैज मौजूद है। मैं गवाह बना के बोलता हूँ। मैं दोपहर में खाना खाने के लिए गया, मेरे दोस्त तफजुल भाई मुझे एयरपोर्ट आने वाले थे, तो बोले आसिफ भाई बहुत बड़ी बात बताऊं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज मैं सुबह वाकई चीनी खरीदने की हिंदू भाई की दुकान पे गया, तो मैंने आवाज दी तो एक लड़की निकल के आई। बोले क्या बात है भाई? मैंने कहा मुझे चीनी चाहिए 3 किलो। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। जैसे चीनी चीनी तोड़ना शुरू किया, उसने 12-13 ग्राम चीनी ज्यादा थे। मैंने कहा बहन ये 12-13 ग्राम निकाल लो, मुझे 3 किलो बराबर दो, जो पैसे मैंने दिए हैं उससे ज्यादा एक चीनी का दाना भी नहीं, कम दो चलेगा, ज्यादा नहीं। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरे धर्म में ये चीज मना है। मालूम है उसने क्या किया? उसने तराजू वहीं रख दिया, अंदर चली गई, अपनी सहेली को लेके आई, फिर लाई तो फिर तराजू उठाया, फिर चीनी की तरफ चीनी ज्यादा डाली। जब वो तराजू पासंग हुआ, झुका, तो फिर मैंने कहा बहन क्या करती हैं आप, इसमें ज्यादा चीनी डालती हैं। मैंने कहा ना मुझे तो 3 किलो दीजिए, एक दाना चीनी का दाना ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरे नबी ने मना फरमाया, तकवे के उसूल के, सोलहीन की तालीम के खिलाफ है, इसलिए आप मुझे ज्यादा मत दें। तब उस लड़की ने कहा इसी को असली मुसलमान कहते हैं, इसी को असली मुसलमान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरा ये टॉपिक नहीं, हुजूर की पैदाइश है साहिब, थोड़ी सी जिम्मेदारी से, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझो। तुम जिस गरीब रिक्शे वाले पर बैठ करके रिक्शे पे सफर करते हो ना, मालूम है उसके कितने ख्वाब होते हैं? वो रिक्शा वाला कहता है, सोचता है जब वो घर से निकल रहा था ना तो उसकी बेटी उससे लिपट गई थी, तो बाप ने कहा था मेरी बेटी क्या बात है? तो बेटी ने कहा था अब्बू मेरे टीचर ने मुझे बहुत मारा, ये जिस पर लकड़ियों के निशान बने, डंडों के निशान बने, मेरे चेहरे पर देख रहे निशान। बोले क्यों? बोले मेरे पास 10 रुपए की कॉपी नहीं है, काफी ना होने की वजह से आज फिर मार खाऊंगी। तो आपने कहा कि बेटी एक दिन सब्र कर ले, आज मैं जाता हूँ रिक्शा चलाने के लिए।
अगर मुझे किसी भाई ने 2 4 10 रुपए बढ़ा के दिया तो कॉपी लेके जरूर आऊंगा। जब वो रिक्शे चला के आपको बिठा के लेके जाता है ना, तो कितने ख्वाब उसके अंदर पलते रहते हैं। वो बेटी बेटी के जिस्म पर रस्सियों के, वो लकड़ियों के निशान, वो खून का जमा होना, मुंजमिद होना, उसकी रोने वाली आंखें, अश्कबार आंखें, सब उसका बाप वो याद करता रहता है और पैंडल मारता रहता है। आप शान से चारों तरफ देखते चलते हो और वो सोचता है अगर भाई साहब ने उतरने के बाद 5 या 10 रुपए ज्यादा दे दिए तो मेरी बेटी कल से मार नहीं। लेकिन हम उतरने के बाद फटी हुई 10 रुपए की नोट देते हैं, पकड़ में इसको, तो रिक्शा वाला कहता है भाई साहब 10 रुपए, वो भी फटी हुई नोट। हम कहते हैं साले इतनी हाँकी मारूंगा दिमाग फट जाएगा, निकल ले। रिक्शे वाला डर जाता है, वो करीब में किसी दरम से पानी पीने के लिए जाता है और हम उसी के सामने स्प्राइट, थम्स अप, माजा, फ्रूटी खड़े होकर पीने लगते हैं। यही बात कही थी सूफी सुल्तान मियां ने। जब मैंने कहा था पहले लखनऊ में हॉस्पिटल ज्यादा नहीं थे, लोग ज्यादा थे, अब लोग भी ज्यादा हैं, हॉस्पिटल भी ज्यादा है, तो सूफी साहब ने कहा था बात ये थी कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाना खाते थे, अब दिखा दिखा के खाना। साहिब वादा करो इंशाल्लाह ऐसा नहीं करोगे। अगर 2 दर्जन केले लेके आ रहे हो घर पे तो एक केला ही सही किसी गरीब को दे देना इंशाल्लाह, बोलो। वो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, जूतों में पालिश करने वाला हो, चाहे अखबार बेचने वाला, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिर्फ एक शख्स का लिहाज ना करें जिसने हुजूर की शान में तौहीन, वक्त खास किसी मजहब का हो, इंशाल्लाह बोले। सूफिया कहते हैं अगर आप चाहते हो कि मेरे नस्लों को बरकतों हमेशा बरकतें रहें, मेरा कारोबार कभी कमजोर ना हो, तो सोने से पहले अपनी छत पर चूटियों चिड़ियों के लिए बाजरा है, पार्ले बिस्किट है, नमकीन सेव डाल, दरवाजे पर कुत्ते को भूखा न सुलाया करें। समझ रहे हैं आप? अगर चाहते हो कि हमारे कारोबार में कभी कमी ना आने पाए, मेरा ये टॉपिक बड़ा लंबा है, मैं इधर चला गया, तो सिर्फ थोड़ी सी बात समझने के लिए, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर कहते हैं वो अपनी गोद में लिए हुए, थके तो नहीं आप बताए बताए, थके तो नहीं है? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुबहान अल्लाह। अल्लाह इस सुबहान अल्लाह का सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे। आमीन कह दो, आमीन कह दो। हौसले बढ़ते हैं, हौसले बढ़ते हैं। मेरे भाई ने कहा था एक जालिम ने भी हुजूर की शान में तौहीन की है, जिसका नाम है तारीख में सबूत, ये जमात देवबंद का है। बाद में इसने जुमले वापस लिए हैं, लेकिन अगर मगर के साथ वापस। ये जो बात कही है प्लानिंग के तहत कही है, अचानक नहीं उसके जबान से। मालूम है उसने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे वो, और कुरान शरीफ में ग्रामर के एतबार से बड़ी गलतियां मौजूद हैं। मैं उस जालिम से कहना चाहता हूँ लकब उम्मी है इल्म फजल का, लेकिन ये आलम है जो उनको मान ले उसकी जिहालत जाती।